السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق ستی. امید ہے کہ آپ کا دن شروعات اس کی اچھی ہوئی ہوگی اور اس شروعات کو مزید آگے اچھا بنانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور یہاں پر آپ ایک امتیازی سلوک دیکھیے کیا کہ میں یہاں پر موجود ہیں, مدیحہ نقوی یہاں پر موجود ہیں, ان کے ہاتھ میں پین بھی ہے. نارملی پینسل ہوتی تھی کیونکہ لکھ کے وہ مٹانا چاہتی تھیں, اب پین پہ آ گئی. دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس نہ آپ کو کافی نظر آ رہی ہے, نہ گرین ٹی نظر آ رہی ہے, نہ کچھ. اس کی تو ریزن یہاں یہ سے کہ پھر ایک آپ کو بندہ اپنا حق اتنا چھیننا ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ کہ ایک بندہ اتنا سوچتا ہے کہ ان کے لیپ ٹاپ کے ساتھ ایک کافی پڑی ہوئی جو وہ نہیں اٹھا سکتے, لیکن اس حوالے سے بات تو کریں گے. آپ نے دیکھا یہ آپ کے آس پاس بھی ہوتا ہوگا اور آپ کہیں گے تو روز کی بات ہے. خیر, مجھے واپس کیجیے میری کافی. شاباش. اور کل فائنلی کراچی کنگز نے اپنے روایتی حریف لاہور کو, کیونکہ جب کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا میچ ہوتا ہے بالکل وہی سچویشن ہوتی ہے جو کہ بالکل انڈیا بھارت اور پاکستان کے میچ میں ایسا ہوتی ہی ہے. بالکل رائیولری ہے. اور اسی رائیولری کو جناب آگے لے کے چلتے ہوئے اس بار کراچی کنگز نے میدان مارا فائنلی, اور یہ ان کی پہلی وکٹری ہے. اور یہ وکٹری ضروری تھی, جیت کا مارجن زیادہ ہونا چاہیے تھا, لیکن بابر اعظم کنسسٹنٹ ہے. آپ دیکھیں ٹیم جیتے یا نہ جیتے, ان کے جو رنز کی تعداد ہے اور جس طریقے سے وہ اسکور کر رہے ہیں دیٹ از کنسسٹنٹ. انہوں نے 54 رنز بنائے اور بڑا کم مارجن سے لاہور قلندرز کو شکست ہوئی. بالکل جی, 7 رن سے تو ان کو ہرایا. اور اب جو کراچی کنگز کی پوائنٹس ٹیبل پہ جو پوائنٹس ہیں وہ 8 ہو گئے ہیں. جی, اس کے ملتان سلطان کی بھی 8 ہیں. اسلام آباد یونائٹڈ بھائی بڑی تگڑی ٹیم جا رہی ہے, 14 ان کے پوائنٹس ہیں. کل انہوں نے پشاور زلمی کو بھی جناب ہرا دیا. پشاور زلمی اور لاہور یہ ایکول چل رہے ہیں ابھی. اور جناب سب سے بڑا ٹارگٹ دیا انہوں نے پی ایس ایل کی تاریخ کا, 247 رنز بنائے. ذرا اندازہ کیجئے 20 اوور کا گیم ہوتا ہے, 20 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں یعنی کہ 10 رن فی اوور بھی ہوں تو 200 بنتے ہیں. انہوں نے اس سے بھی زیادہ رنز بنا دیے. یہ ڈرا رہے ہیں, 6 بالوں پر ایسے 10 کون رن یار, کرتا ہے, مطلب اس سے بھی زیادہ یار. ایسے نہیں. بہت ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. کراچی میں مسائل کے انبار, کون ذمہ دار؟ بیانات اور الزامات کا سلسلہ جاری. سعید غنی کہتے ہیں ذمہ دار این کیو ایم ہے. خرم شیخ زمان نے مراد علی شاہ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا. کورنگی چکرا گوٹ میں سرکاری اسکول کا حال بے حال. سیوریج کا پانی جمع, اسکول میں اساتذہ اور طلباء داخل نہ ہو سکے. شکایات کے باوجود انتظامیہ خاموش. بلوچستان کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. اپوزیشن کا ترقیاتی فنڈز نہ ملنے پر احتجاج جاری. آج اسمبلی کے گھراؤ کا اعلان. سڑکیں بلاک ہونے سے عوام پریشان. جی جناب, تو انشاءاللہ آج تو کیونکہ 18 تاریخ ہے, لیکن 20 تاریخ کو منایا جائے گا فادرز ڈے. لیکن ہم نے کوشش کی, کیونکہ آف کورس 20 کو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, تو ہم جو فادرز ڈے کی سیلیبریشن ہے وہ ایک دن پہلے, انفیکٹ 2 دن پہلے آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کر لیں, بیکاز آف کورس جہاں آپ اور ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو تمام تو سیلیبریشنز وہیں ہوتی ہیں, سیلیبریشنز کا مزہ بھی وہیں پر آتا ہے. جی, اور جناب والد ایک ایسی ہستی ہیں کہ زیادہ تر ان کا وقت گھر سے باہر گزرتا ہے روزگار کمانے کے لیے, بچوں کو پالنے کے لیے. ویسے تو تربیت ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن باپ بھی اپنا اس کے اندر کلیدی کردار ادا کرتا ہے اور ایک محفوظ ماحول پرووائڈ کرتا ہے, بچوں کو ایک سیفٹی کا احساس دلاتا ہے. اور پاکستانی باپ بھی اچھے ہوتے ہیں, ویسے پاکستانی باپ تو بہترین ہوتے ہیں جناب. اور جیسے کیونکہ دنیا بھر میں فادرز ڈے منایا جاتا ہے اور ہر روز ہی دیکھا جائے تو پیرنٹس کے والے سے دن ہوتا ہے, روز ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن جو 20 کو, جو اسپیشلی جو فادرز ڈے کو جو دن منایا جاتا ہے, اس میں ایک ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے. اور ان کو ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم محبت کے تھرو, اپنے اعمال کے تھرو اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کریں. ہم نے بات کی جناب کچھ پولیٹیشین سے, وہ پولیٹیشینز جن کو آپ جب ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو وہ کبھی غصے میں بھی نظر آتے ہیں, بہت زیادہ سیریس بھی نظر آتے ہیں. لیکن آج ہم ان کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں ایز اے بچہ, ایز اولاد, کہ ان کا اس دن کی مناسبت سے اپنے فادر کے لیے کیا میسج ہے, وہ کیا کہتے ہیں, آپ کو سنواتے ہیں. جب میں اپنے والد صاحب کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی, کس طرح میں پڑھایا لکھایا. تو باپ کا جو رول ہے وہ بڑا ایسا رول ہے جو ایک خاموش رول ہے, لیکن وہ بھی درد اسی طرح رکھتا ہے. تو میں آج کے دن سب لوگوں کو کہتا ہوں, ماں کی تو عزت کریں, ماں کے پاؤں تلے جنت ہے, لیکن باپ کو بھی نظر انداز نہیں کریں. جو سب سے زیادہ یاد آتی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ اس نے غربت کو بڑے قریب سے دیکھا تھا, اور جب خدا نے ہم پہ فضل کیا تو اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ ایک مزدور کے بیٹے ہیں. کہیں دل میں یہ نہ لانا کہ ہم یعنی امیر ہیں. کاش وہ زندہ ہوتے اور یعنی
अल्फाज तो नहीं कम पड़ जाते हैं कि जब एक बेटा अपने वालिद को यानी याद करने के लिए कहे। अगर 1000 बार हमसे कहा जाए कि किस घर में तुम्हें पैदा किया जाए तो मैं अपने बाप यानी मैं मोहम्मद रफ़ीक का नाम लूँगा। वालिद साहब से अभी भी डांट पड़ती है बहुत ज़्यादा, गैजेट्स इस्तेमाल करने पे, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने पे, तो डांट अभी भी पड़ती है, मार कभी नहीं पड़ी वालिद साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पेरेंट्स का, बिलखुसूस वालिद साहब का, कि उन्होंने हमेशा सख्तियाँ रखी और जो सख्तियाँ उन्होंने रखी वो अच्छे के लिए साबित हुई हैं, साबित हो रही हैं। मैं वालिद से मोहब्बत का इजहार तो शायद अल्फाज में ना कर सकूं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें सबसे ज़्यादा किरदार मेरे वालिदैन का और बिलखुसूस वालिद साहब का। आई वॉज स्टडिंग इन 4th क्लास और 5th क्लास। स्कूल था हमारा, को एजुकेशन था। ब्रेक में मेरी किसी लड़की के साथ लड़ाई हो गई खेलते खेलते कुछ, और मैंने मार दिया उसको। एंड उन्होंने रिपोर्ट कर दिया हेडमिस्ट्रेस को। हेडमिस्ट्रेस ने मेरे वालिद साहब को बता दिया कि इसने ये किया है, मारा एक बच्ची को। मुझे इतनी मार पड़ी थी उस रात को घर में। एक स्टिक वो कहीं से लाए थे, बड़ी सख्त किस्म की, और उस स्टिक के साथ मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई। ये नहीं देखा उन्होंने कि कहाँ पे लग रही है, लेकिन उन्होंने कहा तुम में ये जुर्रत कैसे हुई कि एक बच्ची को तुमने मारा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज था उनकी तरफ से कि आपने हमेशा औरत का एहतराम करना है। वालिद साहब का वो प्यार याद आता है जो उन्होंने हमेशा ज़िंदगी में दिया, वो हौसला दिया कि ज़िंदगी के अंदर जितनी मुश्किलात हैं उनको किस तरह से एक्सेप्ट करना और आगे लेकर चलना है। हमारा रिलीजन भी, हमारी सोसाइटी भी, हमारा कस्टम जो है पाकिस्तान का, वो तो वालिदैन को और वालिद को बहुत इज़्ज़त देता है, बहुत एहतराम देता है, और उसको हमें रीइटरेट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे अगर हमसे कोई कोताही हो रही है तो उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अगर हमसे अपनी दुनियावी ज़िंदगी में कोई कोताही हो रही है अपने वालिदैन के हवाले से, तो हम उसकी फ़िक्र करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके और इंतहाई नामुस्तैद हालात में गुर्बत गुजार कर हमारी तालीम मुकम्मल कराई है, जो हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। हर इंसान जो है वो अपने वालिद का आईना होता है, जिसमें आज हम जहाँ पे हैं, जिस स्टेज पे, उसमें हमारे वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है। चलें, बड़े अच्छे पैगामात थे, और ये वो सियासतदान हैं जिनकी ज़िंदगी का ये रूप हमें कम ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर हम सुनते हैं बयानिया, ज़्यादातर हम सुनते हैं करप्शन, ज़्यादातर हम सुनते हैं एनआरओ, लेकिन अब ये दूसरा भी एक और दूसरी बात है, इफ्तिखार हुसैन साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उनको देख के मुझे एक तरह से दुख भी हो रहा था, क्योंकि उनके जवान बेटे जो थे वो टारगेट किलिंग का निशाना बने थे, वो शहीद हो गए थे। सो वो तमाम शादी से चंद दिन पहले आप सोचिए कि बाप तैयारी कर रहा है कि उसके बेटे की चंद दिन में शादी होगी, एक ज़िंदगी की नई इनिंग्स का आगाज़ होगा, और ऐसे में वो बेटा उससे छिन जाए। तो इफ्तिखार साहब के दुख में हम बराबर के शरीक रहे, बराबर के शरीक हैं, और आप भी हमारे लिए फादर बजाएं तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके लिए बहुत सारे मैसेज, और हमारे अपने वालिद साहब के लिए जनाब, कि उन्होंने हमें बर्दाश्त किया, हमारे सारे नाज नखरे उठाए, जो हमने चाहा वो हमें करके दिया, अपने ख्वाब पीछे रखे, हमारे ख्वाबों को मुकद्दम जाना। अभी तक आप मुझे देखें ना कि हम जिंदगी में आप भले एक मुतमईन हो जाएं, खुश व खुर्रम हो जाएं, कामयाब रहें अगर मुआशी लिहाज से भी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका एक सपोर्ट स्ट्रक्चर मौजूद होता है। आपके वालिद की सूरत में कोई भी मसला हो, कोई भी मुश्किल हो, वो आपके सर पर हाथ रखने के लिए, आपको दिलासा देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि पूरी दुनिया तुम्हारे साथ ना हो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ। और जितने फादर्स हमें देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन वाले जो देख रहे हैं, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, मेरे पीसीआर में जो बैठे हुए हैं, वो तमाम फादर्स जो अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल रोज निकल के बाहर जब निकल के जब काम कर रहे होते हैं ना, तो बड़ी बड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं, वो तमाम से चीजें उठा रहे। आपको हैप्पी फादर्स डे सबको। बिल्कुल, और कबल इस वक्त हम आपको कर रहे हैं क्योंकि हम अवेलेबल नहीं होंगे, बार बार बता रही है ना, समझिएगा कि आज फादर्स डे, हर दिन वैसे फादर्स डे है, हर दिन हम पहले विश कर रहे हैं। और आप कह रहे थे ना कि पाकिस्तानी फादर सबसे बेहतर होते हैं। हम यूरोप की तरह नहीं कि जब बच्चे 18 साल के होते हैं उनको कहते चलो बाहर निकलो, खुद इसलिए हमने सोचा ही नहीं, जरूरत ही महसूस नहीं की कि हम उनकी तस्वीरें लगाएं इजाफी, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं, जाहिर है हमारे माँ बाप भी पाकिस्तानी है, टीवी चैनल भी पाकिस्तानी है। तो बहरहाल चलो जी आगे बढ़ते हैं, और अब जरा बात कर लेते हैं रोज की तरह। आपको पता है हमारे पास सियासत भी है काफी डिस्कस करने के लिए, फिर शहरों के हालात वो आपके सामने, और कराची शहर जिसकी मस्ती और सबसे ज्यादा बात भी इसलिए करते हैं क्योंकि कराची पाकिस्तान का कमाऊ पूत जो है शहर है जी, कमा के देता है। लेकिन कराची के हालत जनाब
آپ کے سامنے ہے. اور جب کراچی کی حالت زار یہاں تک کیسے پہنچی, جب اس حوالے سے بات کی جاتی ہے تو سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ سندھ پہ اتنے عرصے سے برسر اقتدار ہے, جب ان سے پوچھے جناب کہ یہ کراچی میں اتنے مسئلے مسائل ہیں, ان کا ذمہ دار کون ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ایم کیو ایم ہے. کیا کہا سید غنی صاحب نے, آپ کو سناتے ہیں. جو قتل و غارت خون ریزی جو بد امنی ایم کیو ایم نے شہر میں پھیلائی ہے, بڑی مشکل سے ایم کیو ایم کے ان قابل فخر کارناموں سے اس ملک کی اور اس شہر کی جان چھوٹی ہے. ایم کیو ایم کے کارنامے سے عدالتوں ریکارڈ روم بھرے ہوئے. جی جناب, تو یہ تو ہو گیا سعید غنی صاحب کی جانب سے بیان. اور وفاق میں برسر اقتدار اور گزشتہ انتخابات میں کراچی سے بھاری مینڈیٹ لینے والی تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی تباہی مراد علی شاہ کی ذمہ داری ہے. ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے وزارت اعلیٰ ان کو چھوڑ دینی چاہیے. مراد علی شاہ صاحب, اس شہر کے اندر جتنی مصیبتیں ہیں, ہر مصیبت کے ذمہ دار آپ ہیں. اگر آپ کے اندر ذرا برابر بھی شرم ہو وزیر اعلیٰ صاحب, تو آپ اپنی پوزیشن سے ریزائن کر دیں, بیکاز یو ہیو فیلڈ. جی, اور دوسری جانب سندھ کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ سندھ کی کارکردگی سب سے بہتر ہے. اور سکھر میں انہوں نے بیسکلی میڈیا سے بات کی, جہاں پر انہوں نے وفاق پر تنقید کی اور کہا کہ یہ لوگ یو ٹرن لیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور لگتا ہے کہ ان لوگوں نے آخری بجٹ پیش کیا ہے. بیانات اور الزامات اپنی جگہ, لیکن حالات ساری صورتحال بیان کر دیتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبہ سندھ کی کارکردگی کیسی ہے, کراچی کی طرح حیدرآباد کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے. اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں تو آپ کو بتائیں کہ وہاں کا جناب ایک علاقہ ہے جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا علاقہ ہے. وہاں پر ہوا یہ کہ ایک بچہ کھلے گٹر میں گر گیا, شکر اس کے باپ وہاں پر موجود تھا, اس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے فوراً اپنے بچے کو ڈوبنے سے بھی بچا لیا ہے. پاس کھڑا جو شخص تھا اس نے ویڈیو بھی بنا لی, پھر ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا, اور ہم نے دیکھا کہ وہ کتنا نالا نظر آ رہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ مطلب آپ سوچیں کہ ذرا سی دیر ہو جاتی تو یہ بچہ اپنی زندگی سے محروم ہو جاتا. ہم فادرز ڈے کی بات کر رہے تھے, یہ دیکھیں والد کا یہ بھی کردار ہے کہ کیسے پروٹیکٹیو اس نے میجرز لیے, اور اکثر جو ہے وہ ایسے واقعات میں تاخیر ہو جاتی ہے. لیکن آپ ذرا سوچئے کہ اگر سڑکوں کی حالت زار بہتر ہو, جگہ جگہ مین ہول نہ کھلے ہوں, سیوریج کی لائنیں نہ کھلی ہوں, نالے اس طرح سے نہ ابل رہے ہوں, تو کئی لوگ یہاں تو گاڑیاں پوری کی پوری نالوں میں گم ہو جاتی ہیں. اب ذرا بارش ہونے تو دیں, پھر اس طرح کی اندوہناک خبریں آئیں گی. پھر اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جو دیگر پروجیکٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اس کے جنگلے توڑ کر لوگ وہاں پر سے سفر کرنے پہ مجبور ہوں گے. تو بہت سے معاملات ہیں جس پر. اور ایک چیز مدیحہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کراچی ریونیو جنریٹر ہے, آپ نے بھی کہا کہ کماؤ پوت ہے, 70% سے زائد ریونیو جنریٹ کرتا ہے, منی پاکستان کہلاتا ہے, روزگار کے مواقع پورے پاکستانیوں کو پرووائڈ کرتا ہے. لیکن جب یہاں کے مسائل پر بات ہوتی ہے تو الزام تراشی ہوتی ہے اور کام پھر بھی نہیں ہو پاتے. بس ذمہ داری اپنے پہ لینی ہوتی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے جناب کے رہنما قمر نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ جی قمر صاحب, آپ نے ہمیں صبح صبح وقت دیا. یہ بتائیے گا جی کہ ہم نے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے جب دیکھا سعید غنی صاحب بول رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ کراچی کے ساتھ زیادتی کی جو اصل ذمہ دار ہے وہ ایم کیو ایم ہے, جس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو ہم آپ کا کامنٹ لیں گے اس پہ. کراچی کے رہنے والوں نے, حیدرآباد کے رہنے والوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ویلکم کہا. 1971 کے بعد جو الیکشن ہوئے جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے, اس میں بھی کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیا, جس کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی ان شہروں سے کامیاب ہوئی. لیکن اس کے فوراً بعد ذوالفقار علی بھٹو نے لسان بل لا کر اور پورے سندھ میں جھگڑے کروا کر اور مہاجروں کو, اندرون سندھ رہنے والوں کو ان کے گھروں سے, ان کی زمینوں سے بے دخل کیا. اور اسی پر بس نہیں کی, پھر ایک انتہائی متعصبانہ کوٹا سسٹم لگا کر کراچی, حیدرآباد, سکھر کے رہنے والوں کو صرف ان شہروں تک محدود کیا. اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے یا کراچی حیدرآباد کے لوگوں نے اس کے بعد بھی جب موقع ملا, ہمیشہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے اور پیپلز پارٹی جماعت سے اپنا حد المقدور اس لیے تعاون کیا کہ یہ سندھ کی جماعت تھی. 85 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان تشریف لے کر آئیں, اگر ایم کیو ایم
1988 में उनका साथ नहीं देती तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनती। तमाम पीपल्स पार्टी के कत्ल गारत गरी, कराची हैदराबाद के लोगों के साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के बावजूद जब आसिफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 9-0 पर एमक्यूएम का ताउन लेने के लिए पहुंच गए तो एमक्यूएम ने एक मरतबा फिर एक और चीज भी है गवर्नर नवीद साहब, बात करें इल्जामात की तो सईद गनी साहब तो ये भी फरमाते हैं कि एमक्यूएम ने शहर में कत्लो गारत और बदअमनी फैलाई, बड़ी मुश्किल से इन काबिल फख्र कारनामों से शहर की जान छुड़ाई है। तो आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? एमक्यूएम ने कोई बदअमनी नहीं फैलाई है। अच्छा, एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन होते रहे और इन तमाम ऑपरेशन में पीपल्स पार्टी हमेशा आगे रही है। अब 11-12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पुलिस इनकी है, सारे इदारे इनके हैं। ये दिलवा देते ना एमक्यूएम के किसी एक भी कारकुन को सज़ा। एमक्यूएम के आज तक की तारीख़ में किसी आदमी को सज़ा नहीं हुई और अगर इन दहशतगर्दी कोर्टों को, जिनको बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भी कैंगरू कोर्ट कहा था, अगर इन कोर्टों से कुछ लोगों को सज़ा हुई तो हाई कोर्ट ने उनको सबको बाइज्जत बरी किया है। सही, ठीक है। कंवर साहब ये बताइएगा कि जैसे सईद गनी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से। वो कह रहे थे कि अब जब बल्दियाती इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा मजबूत कौम बन के सामने आएगी, पार्टी बन के सामने आएगी और एमक्यूएम को बीट करेगी। सो आप इस बात पर थ्रेटन फील करते हैं? एमक्यूएम का वोटर पाकिस्तान में वाहिद एमक्यूएम ही एक ऐसी सियासी जमात है कि 1987 से एमक्यूएम ने 1987 में पहले इलेक्शन में हिस्सा लिया था जब कराची से फारूक सत्तार भाई और हैदराबाद से आफ्ताब शेख भाई अनअपोज मेयर आए थे। उस वक्त से कराची हैदराबाद के लोग, नवाब शाह के लोग, मीर बुखास के लोग, सक्खर के लोग एमक्यूएम को वोट देते चले आ रहे हैं और तमाम मजालिम के बावजूद जब एमक्यूएम के वोटर का घर से निकलना माहौल था उस वक्त भी एमक्यूएम के लोग के वोटर ने बाहर निकल के एमक्यूएम को वोट दिया। ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश तो है लेकिन ये कभी ख्वाहिश अमली शक्ल अख्तियार नहीं कर सकती है। हाँ, जो कुछ जेरीमैंडरिंग के ज़रिए और धांधली के ज़रिए पीपल्स पार्टी कर सकती है वो कर रही है। तो गवर्नर साहब आखिर में ये फरमा दीजिएगा सियासी हिकमत अमली क्या होगी? क्या बात सिर्फ अब एहतजाज और बयानात तक ही महदूद रहेगी? एमक्यूएम का जमहूरी तरीक़ों से जो भी एहतजाज है एमक्यूएम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है और कराती रहेगी। कराची, हैदराबाद, मीर बुखास, नवाब शाह, सक्खर के लोगों के साथ होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ हम अदालतों में गए हुए हैं। जो पीपल्स पार्टी ने सिंध के और ख़ास तौर से कराची, हैदराबाद के और सिंध के शहरी इलाकों के जो वो हैं बल्दियाती इदारे हैं उनके जो अख्तियारात मार लिए हैं, ज़ब्त कर लिए हैं, उसके लिए भी हम अदालत में गए हुए हैं। कराची में हैदराबाद के साथ जो चलिए, बहुत शुक्रिया जी। कंवर हमारे साथ तो मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे कराची की सूरत हाल के हवाले से। और अब ज़रा हम क्योंकि कराची के हवाले से बात कर रहे हैं, पिछले साल की बारिशें किसको याद नहीं होंगी कि पिछले साल की बारिशों ने क्या कुछ तबाही मचाई थी कराची में। और अब महकमा मौसमियात ने फिर से मानसून की बारिशों की पेश कोई कर दी है। आज जनाब 18 जून है और 18 जून से कहा गया था कि जनाब सिस्टम बनेगा, बारिशें होंगी। जो मुझे अभी नजर कराची में जाहिर है कि जो लोग परेशान इसलिए होते हैं वो दुआएं करते हैं क्योंकि गर्मी होती है, तो ऐसे में अच्छा होता है कि एटमॉस्फेयर के लिए भी अच्छा होता है कि जो फ़ज़ा में गर्द है वो बैठ जाएगी अगर बारिश के चंद बूंदें गिरेंगी। लेकिन वो जो बूंदें जब ज़मीन पर पहुंचती हैं तो हमारे जो माशाल्लाह हालत ज़ार है जिसकी हम बारहा अक्कासी भी करते हैं, जिसके बारे में बयान भी करते हैं कि बत्ती जली जाती है, बत्ती जली जाती है, सीवरेज का निज़ाम तबाह हो जाता है। जो सीवरेज का पानी वैसे ही सड़कों पर होता है वो मज़ीद उसको फैलने का, नशोनुमा पाने का मौका मिलता है और ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचता है। पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है ना, तो जहाँ जहाँ पहुंचता है तो फिर वहाँ पर लोग अपने सामान लेके
ऊंची जगहों पर, अपने घर के अंदर बुलंद मकामात ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पर अपना बिल्कुल सामान आपने बात सही की। और अभी ये देखें, अगर ये हालत सही ना की गई तो अभी जो दोबारा बारिश होगी, इस साल की जो बारिश होगी, उससे आप सोचें कितना और बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी बारिश नहीं हुई, लेकिन कोरंगी में एक स्कूल ऐसा है जिसके तलबा समेत उनके जो सातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। और जो स्कूल है ये चक्रागोट में, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर इस कदर सीवेज का पानी जमा हो गया है कि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते। वहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो कहें कि भाई हमने इतनी बार शिकायत की है, लेकिन इंतजामिया के कानों में कोई जूं तक नहीं लेंगी। कचरा भी पड़ा हुआ है, सीवेज का पानी, आप बताएं यहाँ तक ये स्कूल के बाहर यहाँ पर सोचेंगे पानी जब बारिश होगी, यहाँ पर आप सोचिए कि यही रंग बिरंगी थैलियाँ आपके अतराफ आपकी टांगों से चिपकेंगी, लिपटेंगी, अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगी। तो इससे बेहतर है कि ये जो बच्चे हैं, जो असातिज़ा हैं, उनको इस सिचुएशन से बनाएं। यहाँ पर गलाजत तो अपनी जगह मौजूद है, बीमारियां, ताफुन, उसमें मजीद इजाफा होगा बारिश होने से। और ऐसा मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जो बच्चे हैं वो अंदर जाते कैसे होंगे। ये स्कूल की एंट्रेंस ही लग रही है, कोई कच्चा कुंडी लग रही है। तमाम तर हमें सूरत हाल से मजीद आगाह करें हमारे नुमाइंदे अनवर खान। जी अनवर खान। जिस वक्त मौजूद है हम हमारे एक चक्रागोट के अंदर गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है। मेरे पस मंजर के अंदर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे ये तमाम तो जो सूरत हाल है इस वक्त। इस कदर कचरे और गंदगी ढेर है जिसकी वजह से असातिज़ा आज स्कूल सुबह आए थे, जिसके बाद असातिज़ा ने स्कूल आने से माजरत कर ली है। और तालिब इल्म को जिनकी तदरीसी अमल अब प्राइमरी स्कूलों के अंदर पी से शुरू होना है, वो तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया गया है। और आज असातिज़ा की शिकायत के बाद डिप्टी कमिश्नर ने दौरा किया और डिप्टी कमिश्नर भी इलाका मकीनों के मुताबिक दौरा करके वापस चले गए। असातिज़ा के मुताबिक के मुतादिद मरतबा महकमा तालीम को शिकायत की गई। महकमा तालीम के अलावा मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और तमाम लोगों को शिकायत की गई, ताहम इसका इजाला नहीं किया जा सकता है। ये रास्ते हैं, स्कूल का गेट है, यहाँ पे अंदर जाने की गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। इसके ऊपर इस पर तकरीबन 2 से 2.5 फीट पानी मौजूद है, दलदल है, स्कूल का मरकजी गेट बंद है, लिहाजा अंदर दाखिल होने की कोशिश करने के बावजूद असातिज़ा किराम यहाँ से वापस चले गए। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला से, गवर्नर से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यहाँ पे निकासी आपको इंतजाम किया जाए ताकि स्कूल के अंदर तदरीसी अमल को बहाल किया जा सके। जी चलें जी, अल्लाह करे स्कूल की हालत ज़ार बेहतर हो और ये जो कचरा है ये जल्दी ठिकाने लगाया जाए। ये अभी आपने सूरत हाल देख लिया। इससे पहले हम सुबह जब शो के आगाज़ से बात कर रहे थे ना कि कराची और लाहौर का जो मैच था, और उसमें मैच देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कराची और इंडिया का मैच हो रहा हो। कराची और लाहौर की, हाँ, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो। जब कराची और लाहौर के लोगों की बात की जाए ना, इनके मिजाज की बात भी की जाए, बहुत सारी चीजों की बात भी की जाए, तो मिजाज में बड़ा जनाब इनमें वो देखते हैं कि फर्क होता है। वहाँ पर बड़े मुकाबलेबाजी है, लेकिन डिफरेंट जो है वो एक मिजाज है। वहाँ पर खाने पीने को ज्यादा तवज्जो दी जाती है और इस तरीके से हर चीज में हम देखते हैं कि फोकस होता है कि खाना लाजमी हिस्सा है जिंदगी का। और बाकायदा देखें यहाँ पर ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि क्या खाना है तो उसके अंदर ज्यादातर सोचा जाएगा अवेलेबिलिटी के बारे में, और दूसरा ये सोचा जाएगा कि यार इतनी दूर सफर करके कौन जाए। लाहौर में जब मुझे काम करने का एक्सपीरियंस हुआ तो वहाँ पर मैंने देखा कि बाकायदा जिस तरह से आप किसी बुलेटिन की या किसी मॉर्निंग शो की प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ खाने की प्लानिंग हो रही होगी कि कौन सी चीज कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से जा सकते हैं, और बड़ी अरख्रेजी से उस पे जो है वो काम हो रहा है। नहीं बबे, दे टेक देयर फूड वेरी सीरियसली। कराची में भी ऐसा ही है। अब जैसे लाहौर के बारे में मशहूर है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं थी, जिन्हें कराची नहीं देखा वो की मिस कर रहे हैं। लोगों से हमने बातचीत की, लोग क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। बात तो है कराची को जो कहते हैं कि गरीब परवर शहर है, तो बिल्कुल सही कहते हैं। पूरे पाकिस्तान से हम देखते हैं कि लोग कराची आते हैं रोजगार कमाने के लिए, और कराची किसी को मायूस नहीं करता। ऐसे ही है, आप देख सकते हैं। लेकिन कराची आते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। I was born and raised in Karachi. I am married in Karachi. गल मुक गई। सही है, आप मैरिड में हैं। डोमिसाइल चेक करेंगे आप। मैं ब्रेक में डोमिसाइल चेक करता हूँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। कल वो दिन आ गया, कल वो दिन आ गया और कराची किंग्स जनाब कामयाब हुए और उन्होंने हरा दिया। और हराया भी किसको? लाहौर कलंदर्स को, यानी कि जिनके साथ राइवलरी ऐसी ही है जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान राइवलरी। मुझे लग रहा है शफाक के कराची किंग्स ने कहा कि भाई ठीक है हार गए बाकी टीमों से, लेकिन लाहौर से नहीं हारना। यानी कि आप सोचें, कल ने कर दिखाया बड़ी मुश्किल। मतलब देखा है कि 7 रन से जीते, सिर्फ 7 रन से। हालांकि टारगेट अच्छा दिया था, लेकिन लाहौर की टीम भी अच्छी है। 177 रन का हदफ था और उसको चेस करते करते वो सिर्फ 7 रन पीछे 169 रन तक पहुंच पाए। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टीम जीत रही थी या नहीं जीत रही थी, इससे पहले भी बाबर आजम बड़ा अच्छे खेल रहे हैं। बिल्कुल कंसिस्टेंसी देखे ना कि बाबर की जो परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी इज देयर। अच्छा, कल एक और मैच भी हुआ
جو تھا اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور زلمی کے درمیان. ابھی تک یہ جو دو ٹیمیں ہیں یہ بیسٹ چل رہی ہیں سیزن میں, اور اسلام آباد یونائٹیڈ جو کہ ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ انبیٹیبل چل رہی ہے, اس نے پشاور زلمی کو بیٹ کیا. اچھا, اب کراچی کو کیونکہ دیکھیں ہم کراچی کی ٹیم ہے تو ہماری دعائیں بھی یہی ہیں کہ جی جو کراچی ہے وہ آگے پلے آف تک پہنچے, لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ابھی جو دو میچز ہیں اس میں کراچی کنگز کو بڑے اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے. ایک نہیں ہوا تو کیا صورتحال ہو سکتی ہے ہم نہیں بتا سکتے, یہ جناب ہمیں بتائیں گے. شاید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب, ہمارے کرکٹ کے گرو. السلام علیکم ہاشمی صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. میرے خیال سے ہاشمی صاحب سب سے پہلے تو ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دے کے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے کہ مبارک ہو, کل کراچی کنگز جیت گئی فائنلی. بڑی ٹینشن بڑی پریشر دیکھا ہے ٹیم نے. خیر مبارک جی, بہت بہت خیر مبارک. اچھا میچ ہوا اور مزہ آیا. اوپر کی ٹاسیں اوپر, نیچے کی ٹاسیں نیچے, سنسنی خیزی. ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ آرام سے جیت جائیں گے. 4 اوور میں 64 رنز چاہیے تھے لاہور قلندر کو 16 کے ایوریج سے, لیکن پھر عباس آفریدی کے ایک اوور میں 19 رن بنے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وکٹ بھی لے لی. پھر آخری 2 اوور میں 27 رن جو کہ بن سکتے تھے. عامر نے بہت ہی اچھا اوور کیا, گو کہ اسے دوسری بال پہ چھکا پڑ گیا تھا, لیکن اس نے اس کے بعد صرف 1 رن اور دیا اور 20 رن بچائے آخری اوور کے لیے. پھر وہ محمد الیاس نے اوور کیا. الیاس بہت اچھا فاسٹ بالر ہے کے پی سے, ابھی تک وہ پاکستان کی ٹیم میں نہیں آیا, مجھے بڑی حیرانگی ہے. تو اوور آل میچ بڑا اچھا ہوا, اور سب سے اچھی بات جو اس میچ کی تھی وہ یہ تھی کہ کراچی کنگز کی کپتان عماد وسیم نے وہ بہادری دکھائی جو اب تک وہ نہیں دکھا رہے تھے. بیٹنگ میں زبردست کام کیا, انہوں نے 30 رن بنائے, 1 وکٹ لی, 1 کیچ پکڑا, اور میرے حساب سے مین آف دا میچ وہ تھے. پتہ نہیں کس طرح یہ لوگ مین آف دا میچ دے رہے ہیں. اینڈ آلویز دی کیپٹن ہیز ٹو لیڈ فرام دی فرنٹ. تو یہ ایک اچھا انہوں نے کیا, کیونکہ کپتان بریو ہوگا تو پھر باقی پلیئرز بھی اس کے نقش قدم پر چلیں گے, ڈر کر فیصلے نہیں کریں گے. ایک ان کے اندر خود اعتمادی ہوگی, اور ظاہر ہے اس خود اعتمادی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسکور بھی اچھا دیا تھا. ظاہر ہے 109 رنز پر تو یہ اعتماد نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال اب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ ذرا فوراً کیلکولیٹر نکالیں, بلکہ آپ کے تو دماغ میں سارا کچھ چل رہا ہوگا, نیٹ رن ریٹ پر اس سے کیا فرق پڑا ہے, کیونکہ مارجن تو اتنا زیادہ نہیں تھا جس سے شکست ہوئی لاہور قلندر. نہیں, نیٹ رن ریٹ پہ اتنا فرق نہیں پڑا. نیٹ رن ریٹ وہ رن ریٹ ہوتا ہے جیسے ہم نے رن ریٹ 5 حاصل کیا اور سامنے والی ٹیم نے 3, تو آپ کا نیٹ رن ریٹ 5 - 3 2 ہو گیا, اور سامنے والی ٹیم کا 3 - 5 - 2 ہو گیا. تو ابھی تک ہم اتنا نیٹ رن ریٹ میں آگے نہیں ہیں. ابھی بھی دلی بہت دور ہے کراچی کنگز کے لیے, یعنی پلے آف کی پوزیشن کافی دور ہے. ایک میچ رہ گیا کراچی کنگز کا جو کل کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا, لیکن ملتان اچھی پوزیشن میں, اس کے 2 میچ ہیں. آج انہوں نے لاہور قلندر سے کھیلنا ہے اور انشاءاللہ لاہور قلندر ان کو ہرائے گا, اس لیے کہ لاہور قلندر کی بھی اپنی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے, پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی, وہ کہ ان کا نیٹ رن ریٹ اچھا ہے. اور آخری میچ آخری دن پھر کراچی ورسز کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹیڈ ورسز ملتان سلطان. یہ بڑا ٹرکی میچ ہوگا, آخری میچ ہوگا. اسلام آباد یونائٹیڈ چونکہ 14 پوائنٹس کے ساتھ آلریڈی ٹیبل ٹاپر ہیں, وہ اپنے پلیئرز کو, اچھے پلیئرز کو ریسٹ کرا سکتے ہیں ود ان دیئر رائٹس. لیگل بات ہے یہ کہ وہ اپنے پلیئرز کو ریسٹ کرا سکتے ہیں, جس کا فائدہ ملتان سلطان. اچھا ہاشمی صاحب یہ بتائے گا کہ کیونکہ اب جو کراچی کا جو دوسرا میچ ہونے جا رہا ہے, اس میں کراچی کو کتنا بڑا مارجن چاہیے ہوگا جیتنے کے لیے, پلے آف تک پہنچنے کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جیتنا ہوگا, اس لیے کہ اگر آپ جیتیں گے نہیں تو آپ 8 پوائنٹ پر رہ جائیں گے. جیت کر 10 پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے. اس کے بعد پھر یہ فکر کرنی ہوگی کہ آگے آپ کا نیٹ رن ریٹ کیسا بڑھتا ہے. بہت بڑا مارجن چاہیے ہوگا 70-80 رنز کا, کہ کسی طرح ملتان سلطان کے اس نیٹ رن ریٹ کو جو 0.8 ہے, 0.8, اور ہمارا -0.2 ہے. تو یہ بڑا مارجن ہے. چلیں جی, بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ, اور بس دعا بھی ہو رہی ہے. اور نیٹ رن ریٹ میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ مدیحہ بھی کیلکولیٹر جیسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ کتنا فرق ہے, کتنے جو ہے وہ پوائنٹس ہیں, کس طرح آگے جانا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بھائی میچ جیتنا ہے, اور پھر اس کے بعد دعائیں کرنی ہے کہ جو مخالف ٹیم ہے وہ میچ ہار جائے. یہ کراچی کنگز کے فین کے لیے, اور باقی ٹیمیں بھی اسی اعتبار سے اپنے اقدامات کر سکتے ہیں. ان کے فین بھی سوچ سکتے ہیں کہ کس کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن اگر مخالف ٹیم بھی جیت گئی تو جیت تو کرکٹ کی ہوئی نا. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور ہمارے جو جذبات اس وقت عروج پر ہیں, میرے لہجے میں جو گرم جوشی ہے, اس کی وجہ یہ گرم موسم ہے. اور اس گرم موسم کی کئی اثرات ہوتے ہیں آپ کی جلد پر, کئی پریشانیاں آپ کو ہوتی ہیں,
और वो परेशानियां क्या है मदिया? परेशानियों को भी आपने ऐसे बयान किया कि मुझे कॉमेडी लग रही थी, ठीक है ना। देखिए गर्म मौसम तो है, गर्म मौसम में आपको पता है अभी मानसून की बारिशें होंगी, जब मानसून की बारिशें होती है ऑफ कोर्स ह्यूमिडिटी होती है, जब ह्यूमिडिटी होती है बहुत सारे फल भी ऐसे जो हम खाते हैं, जैसे कि आम, एक तो इतनी गर्मी, फिर आम की तासीर गर्म, ऐसे बहुत सारे हम फल खाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, तासीर गर्म होती है, फिर क्या होते हैं हमें गर्मी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। सो अब क्या करें जनाब कि इन गर्मी दानों से हम निजात हासिल कर सकें, क्योंकि गर्मी दाने सिर्फ बड़ों को नहीं होते बल्कि छोटे बच्चे हैं ज्यादा उनको होते भी ज्यादा होते हैं, उनको तो रैशेस हो जाते हैं और वो बेचारे तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज इस हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से हम इन गर्मी दानों से निजात हासिल और करें। बात करने के लिए हमारे साथ वक्त स्टूडियोज में बराजमान हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह आपका चेहरा देखा और हमें कई अमराज याद आ गए जिस पे हमने आपसे बात भी की। अब जरा ये बताइए, जो गर्मी दाने हैं, आम का सीज़न है, इसका आम से ताल्लुक हो सकता है या शदीद गर्मी से इसका ताल्लुक? शदीद गर्मी से इसका ताल्लुक है, क्योंकि जब धूप की तपिश लगती है, आपने देखा होगा जब हम शावर लेते हैं उसके बाद भी हमें बॉडी में थोड़ी देर के बाद जब बॉडी खुश्क हो जाती है तो हमें गर्मी महसूस, चुभन सी महसूस होती है। तो बाज़ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, बाज़ लोगों को गर्मी दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बाज़ गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत हाल भी होती है। ख़ास तौर पे ये बच्चों को आपने जिस तरीके से कहा, ये बच्चों में ज़्यादा होती है। तो जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर्स वगैरह भी लगाते हैं, तो जैसे पित्तों का पाउडर आता है, मुख्तलिफ़ टाइप के बनाते हैं, तो ये चीज़ आप खुद बना लें अपने घर पे। वो कैसे? पहले तो सबसे पहले ये बताइएगा कि हम जो नॉर्मल एक्नी है, नॉर्मल कोई दाना है, उसको गर्मी दानों से मुख्तलिफ कैसे बता सकते हैं कि ये गर्मी दाने हैं, ये आपको एक्नी है? देखें, एक्नी जो है वो 14 साल से लेकर 25 साल तक के दरमियान में निकलती है। ये कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, ये मौसम को नहीं देखते हैं। ये सर्दियों में भी निकलते हैं, गर्मियों में भी निकलते हैं, साल 12 महीने निकलते हैं ये। तो जो गर्मी दाने हैं वो सिर्फ गर्मी के दिनों में निकलते हैं, जब शिद्दत की गर्मी चल रही होती है, जैसे मई से लेके अगस्त तक, ये गर्मी के सीजन्स होते हैं। उसके बाद नॉर्मल मौसम रहता है, तो उसमें ये है कि ये नहीं निकलते। बाजू का लाकड़ा ककड़ा के टाइप के भी निकलते हैं, वो भी गर्मी दानों की एक किस्म होती है। फर्क क्या होता है उसमें और नॉर्मल? उसमें ये है कि खारिश ज़्यादा होती है, कमर पे यहाँ पे निकलते हैं, ईचिंग खारिश। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये क्या पसीना निकलने से ज्यादा इसका कोई ताल्लुक होता है कि पसीना निकला या कुछ इस तरीके से साफ ना किया तो उस सूरत में भी ये सफाई का तो रीज़न है ही है, लेकिन बाज़ लोगों के जो पसीना होता है, स्वेटिंग होती है, उसमें तेजाबियत होती है, वो बहुत ज़्यादा असर करती है। इस पे स्किन पे भी असर आता है, स्किन का कलर भी डार्क होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है। आपने अक्सर देखा होगा लोगों की गर्दन काली हो रही होती है और बॉडी के 2 टोन हो रहे होते हैं, किसी तरफ से फेयर होता है, काले होते हैं, दिल भी काले होते हैं। अच्छा, खैर आपने मुझे ये बताया कि इसका आप जैसे प्रिकली हीट का इन्होंने तस्करा किया, क्रीम भी है और उससे हटके ये है कि आपने कहा घर में भी कुछ आप कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, घर में भी आप इसका प्रिकली हीट अपना खुद बना लें। वो कैसे? आपने 1 पाव सफ़ेदा काशगरी ले लें, उसमें 10 ग्राम सत्ते पुदीना डाल लें, अच्छा मिक्स कर लें, आपका प्रिकली हीट नोट कर लें जी। ये बच्चों को भी लगा सकते हैं? ये बच्चों को भी लगा सकते हैं, बड़ों को भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम वही चीज़ होगी, जैसी लगाएंगे ठंडक का एहसास होगा। अच्छा, वही चीज़ बनेगी। बस ये 2 आइटम, सिर्फ 2 ही आइटम है, 1 पाव सफ़ेदा काशगरी, 10 ग्राम उसमें सत्ते पुदीना, ये आप मिला लें। ये क्रिस्टल होता है, व्हाइट कलर का होता है, पंसारी की दुकान से मिल जाता है। अच्छा हकीम सर, ये बताइएगा, चलिए तो जो आउटर सतह पर हमने जो करना है उसकी बात होगी, हमें ऐसी क्या कुछ चीज़ें पीनी चाहिए मशरूब में, खाने में, ऐसी कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें इस गर्मी दानों से निजात मिले? देखिए, सबसे पहले तो आप जिसमें पानी का टेक ज़्यादा होता है ना, वो चीज़ें इस्तेमाल करें। आमतौर पे तो आप एक दिन में 10 गिलास तक पानी पी लें, 12 गिलास पी लें, जितना पी सकते हैं आप। हर 1 घंटे बाद आधा गिलास पी लें, जो सबसे ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, तरबूज, खरबूजा, ये चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जामुन आजकल आए हुए हैं, ये ब्लड प्योरीफाई भी है, इसमें सीरम इंसुलिन भी आपका पूरा होता है, तो आप ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे बच्चों को देना हो तो 2-4 दाने सुबह, 2-4 दाने शाम को दे दें, बच्चे तो नहीं खाएंगे। बहुत ईजी है। आम बड़े जो हैं वो 10 दाने सुबह, 10 दाने शाम को पिए, तो खाएंगे तो इंशाल्लाह। फालसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आम खाएं, आम के बाद 2-4 दाने जामुन के खा लें। अच्छा जी बिल्कुल, ये तो कल भी हमें पता चला था कि वो शुगर लेवल भी आपका, ब्लड शुगर, ये सिर्फ इंसुलिन को भी कंट्रोल करती है ना, तो ये एक चीज़ पूरी होती है। जिन लोगों को एक्नी निकल रही हो, एक्नी के दाने, तो वो नीम के ताज़ा पत्ते ले लें थोड़े से, आप उसे पानी में डालें और उससे शावर नहा लें आप, अच्छा, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक बूटी आती है पनीर के नाम से, अच्छा, वो 5 दाने, उसके देखो तरकीब होनी चाहिए है, तो ये सबको पता है पनीर ब्लड प्योरीफाई है, लेकिन बाज़ लोग मुट्ठियाँ भर भर के डाल रहे होते हैं, जो कि इतना असर नहीं होता। आप उसके सिर्फ 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक तो ये खून धोएगी, दूसरा गर्मी की शिद्दत को कम करेगी। अगर आपके चेहरे पे एक्नी के दाने, निशान और 2 टोन चेहरा हो रहा हो, तो
تو آپ نے لینا ہے انار کے پھول 20 گرام, حسن یوسف 20 گرام, مونگ کی دال 50 گرام, ان کو ملا کر پاؤڈر بنائیں اور ارک گلاب میں پیسٹ بنا کے اپنے فیس پہ اپلائی کریں, 15 منٹ لگائیں, 15 منٹ بعد دھو لیں. ایک ٹائم روزانہ کرنا ہے, 1 مہینہ کر لیں, ایکنی کے دانے بھی ختم ہوں گے, اس کے نشان بھی ختم ہوں گے, اسکن بھی ہموار ہو یہ جائے گی. قدرت کی طرف سے ان کے اندر بلیچنگ ایجنٹ بھی ہوتا ہے. اچھا حکیم صاحب, اسپیشلی آپ کے لیے ایک سوال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہوتے ہیں, جب وہ آم کھاتے ہیں اور آم زیادہ کھاتے ہیں تو اس کے بعد جب بلڈ پریشر میں چیک کرواتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر زیادہ بڑھا ہوا آتا ہے. کیا ایسا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ بلڈ پریشر کا پیشنٹ جب بھی کوئی طاقتور چیز کھائے گا تو اس کا بی پی شوٹ کرے گا. جی ہاں, تو اس لیے جب ڈاکٹر بھی اسے کوئی ملٹی منرلز دیتے ہیں تو ان کا بی پی کے حساب سے انہیں چیک کر کے دیتے ہوتے ہیں. تو یہ ایک احتیاط کریں آپ لوگ, نمک کا استعمال اور گھی کا استعمال کم کریں, کوکنگ آئل کا استعمال کریں گھر پہ. اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا, کل ہم نے فالسا کے والے سے بات کی, ہم نے چیری کے والے سے بات کی, وہ چیزیں جو ہم جس کا مشروب بنا لیتے ہیں کہیں نہ کہیں یوز کر لیتے ہیں. جامن جو ہے, جامن ہم صرف ثابت ہی کھاتے ہیں, تھوڑا بہت نمک مرچ مسالہ لگا کے کھا لیا. کیا جامن سے کوئی چیز تیار نہیں کی جا سکتی؟ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ آپ جامن کا پلپ لے لیں, اس کا بیج ہٹا لیں, اس کا پلپ لے لیں, اس میں تھوڑا سا کالا نمک ڈالیں اور اس میں 1 پینچ جو ہے ادرک ڈال لیں پاؤڈر میں. آپ اس کا جوس بنا کر پئیں, ایک تو ذائقہ بھی بہت اچھا ملے گا, ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے بھی بہت بہتر ہے. اگر بلڈ پریشر رہتا ہو تو پھر نمک نہ ڈالیں. اور اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوں گے. اچھا اس کے علاوہ گرمی دانوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ جناب پھل بھی اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. بیف کا آپ نے تذکرہ کیا, اور کون کون سی غذائیں ہیں پروٹین میں جن کو کھانے سے اس موسم میں آپ کو گرمی دانے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس موسم میں اگر آپ سبزیوں میں استعمال کریں گے تو بینگن کا استعمال کریں گے تو گرمی دانے آئیں گے. کم کریں, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پھلوں میں آپ سارے پھل, سب میں وٹامن سی بھی ہے اور اس کے علاوہ کسی میں کیلشیم ہے, آئرن ہے, پوٹاشیم ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان کے کھانے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا. آم زیادہ کھائیں گے تو اس سے گرمی ہیٹ اپ ہوگی باڈی میں, لیکن آپ اس کے بعد آدھا گلاس پانی اور تھوڑا سا دودھ ملا کر آپ پی لیں آم کے بعد, تو آپ کی گرمی کی شدت کم ہو جائے گی. گوشت وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن 1 اونس کھائیں آپ اس موسم میں, اپنے موسم کے حساب سے اچھی طرح چبا کے کھائیں جو بھی چیز کھائیں. اور کچی لسی جو ہے وہ اس کا استعمال کریں, اور تلی ہوئی چیزیں سے اجتناب کریں. بالکل. آپ نے اس موسم میں دیکھا ہوگا سر میں ایچنگ, خارش شروع ہو جاتی ہے, خشکی کی تیز جم رہی ہوتی ہے. 1 اونس کا جو آپ نے تذکرہ کیا 100 گرام, اس کو چبانے کے لیے اس کے اندر ہوگا کیا جو چبائیں گے؟ گجرانوالے والے دیکھ رہے ہوں گے, پہلوان روٹی بھی ہوگی. تو بہرحال وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا میں بتا رہا تھا کہ سر میں ایچنگ, خارش شروع ہو جاتی ہے, خشکی کی تیز جم جاتی ہے, بعض لوگوں کو سر میں بھی دانے نکل رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بال بھی گر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ایک پاؤڈر ملے گا کمیلا کے نام سے, کمیلا, اسے سرسوں کے تیل میں ملا کے سر پہ لیپ کر لیں 15 منٹ, اس کے بعد آپ شاور لے لیں, آپ دیکھنا آپ کی 80% خشکی دور ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. دیکھا آپ نے نام کتنا ہوا ہے, ایک سنگر بھی ہے اس کا نام بھی کمیلا. کبھی یاد آ گئی مجھے. بہت شکریہ جی, حکیم شاہ نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت کچھ انہوں نے بتایا. آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں پرکلی ہینگ پاؤڈر, جو نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی لگایا جا سکتا ہے. اب ہم لے لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. اوکے جی, تو آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا اور میں ہوں حسب روایت حسب معمول آپ کا اپنا اشفاق اسحاق ستی, اور میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ مدیحہ زہرا نقوی. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, آپ نے میرے پورے نام کا رٹا لگایا, مجھے بہت اچھا لگا. اچھا آج کا ڈے جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اشفاق. آج بلوچستان کا بھی بجٹ پیش کیا جانا ہے, اور بلوچستان ایک ایسا صوبہ جہاں پر ترقیاتی منصوبوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, جہاں کی عوام جو کہ ایک عرصے سے ڈپرائیوڈ رہی ہے, ان کی تعلیم پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ان کی صحت پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ اکثر اشفاق میں دیکھتی ہوں, میں اگر کسی بلڈ سینٹر میں بھی چلی گئی, میں کسی تھیلیسیمیا کے سینٹر میں چلی گئی, میں وہاں پہ بھی دیکھتی ہوں کہ بلوچستان سے لوگ آتے ہیں کراچی میں خون لگوانے کے لیے, علاج کروانے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ کے لوگوں کو بڑی فیسلٹیز تو ایک الگ بات ہے, نیسیسٹیز نہیں ہیں. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, اس کی اسمبلی سب سے چھوٹی ہے کیونکہ آبادی کی کمی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو گھر ہیں وہ دور دراز دیہات میں, جو وہاں کے پولیٹیشنز ہیں وہ مین اسٹریم پولیٹکس کو انجوائے کرتے ہیں, پاورز کو انجوائے کرتے ہیں. آپ سمجھیے کہ اگر اسمبلی کا حال اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پر سچویشن یہ ہے کہ 65 ارکان میں سے آدھے سے زیادہ وزیر, مشیر یا کوئی نہ کوئی ان کے پاس ڈیزگنیشن ہوگی. ایک وقت ایسا تھا بلوچستان کی اسمبلی میں کہ تقریباً سارے کے سارے وزیر, مشیر یا کوئی نہ کوئی پارلیمانی سیکرٹری وٹس ایور, اور یار محمد رند صاحب جو ہے وہ وہاں پر تھے, وہ اپوزیشن لیڈر تھے, واحد اپوزیشن لیڈر, مطلب ان کے نیچے اپوزیشن کوئی نہیں تھی, لیکن ہی واز دی ون.
तो जब तक ये फ़वाइद आम लोगों पर मुंतकिल नहीं होंगे, जिनको तालीम की कमी है, रोज़गार की कमी है, गलाबानी करके वो अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं, तालीम की कमी है, हालांकि मिनरल्स से वो सूबा जो है माला माल है। 300 मिलियन बैरल तेल के ज़खायर हैं, 19.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर मौजूद हैं, ऑन शोर और ऑफ शोर। ग्वादर पोर्ट वहाँ पर है। इसके अलावा और कौन कौन से रेगुटिक का मंसूबा ले लें, और कौन कौन से मंसूबे वहाँ से ज़रख़ेज़ ज़मीन है, लेकिन उसके बावजूद जो उसके समरात है ना वो लोगों तक नहीं पहुँचे। इस पर बात करेंगे। और जनाब यूट्यूबर्स की आ गई है शामत, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी किस्म का कंटेंट बना के अपने यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो जनाब आपको छितर भी पड़ सकते हैं और आपको जेल की भी हवा जानी लेकिन पड़ेगी। मुझे एक मिजाज समझ नहीं आ रहा। आप कहीं पे भी सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, आपने 2 दोस्त अपने ले लिए किसी भी तरह से, और किसी भी जाती लड़की को आपने छेड़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही लोग जमा हुए, दुपट्टा लें या व्हाट्सएप कोई भी बात हो, आप उसे नंबर मांग लें उसका, ठीक है, उसके बाद जब आप पकड़े जाएं तो वो आप कहेंगे ओहो हो देखें, वो देखें कैमरा लगा, वो देखें कैमरा प्रैंक कर रहा था। ये मजाक है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कैमरा तो हमारे सामने भी लगा हुआ है, हम तो ऐसी बात नहीं करते। बिल्कुल जी, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। तीन रोज बाद ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में तकरीर मुकम्मल। ऐवान चलाने के मामले पर ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा हो गया। फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद की वापसी की दरखास्त की है। वाह जी वाह, मतलब आप देखें यार देखिए कैसे ब्रश मार रहा था सुकून से। हमसे ज्यादा तो वो मतलब एक क्या 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 कहते हैं उसको, सुगड़ है। सबसे ये सुगड़ अम्मियाँ कह रही होंगी बंदर से सीखो। हाँ, बंदर से सीख लो। खैर जी, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेक पर आने के बाद कौमी असम्बली के सेशन के हवाले से, जिसमें कल जो हंगामा रही पिछले कई दिनों से हो रही थी वो हंगामा रही नहीं, और फाइनली ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 3 दिन बाद कल 2 घंटे और ऑलमोस्ट 18 मिनट, सवा दो घंटे की तकरीर की, और लोगों ने सुनी भी बिला शुबा। और उस तकरीर के दौरान ये मुझे लगा ये कि बिलाखिर कोई पैचअप हुआ है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, जिसके बाद ये तय पाया। राना सनाउल्लाह का आपको याद है एतमाद आ रही थी ना, एक वो आ रही है, पता नहीं आ रही, वो आएगी तो उससे क्या होगा, तो वरना हंगामा हो जाता। जी जनाब, तो ये कुछ पैचअप हुआ है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की और आप देखें 3-4 चौथे दिन जाके ये मामला तय पाया है। और उसके बाद जनाब स्पीकर असद कैसर साहब ने हंगामा आराई करने वाले 7 अरकान के कौमी असम्बली में दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी। उसके ऊपर अपोजिशन का नैरेटिव ये था कि भाई हंगामा आराई करने वालों में तो हुकूमती वज़रा भी शामिल थे। गंडापुर साहब को तो हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल फेंकते हुए देखे थे जो कि बजट की किताबों को यूज कर रहे थे। इसके साथ साथ अपोजिशन की जानिब से भी किया जा रहा था। और तो उससे ज्यादा जो गालम गलोच ने जो हर्ट किया ना, वो उससे लाइक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। खैर जी, वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी जो हैं वो ये कहते हैं कि कोशिश है कि ऐवान का जो माहौल है ये पुरअमन रहे, और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐवान दुनिया भर में हमें भी रिप्रेजेंट करता है। हम अपने घरों में ऐसे गालियां नहीं देते जो ऐवान में दी गई थी। लेकिन खैर फवाद चौधरी और परवेज खटक साहब ने जो कल हमने देखा स्पेशली मीडिया से गुफ्तगू भी की, और ऑपोजिशन से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो वापस लेने की दरख्वास्त भी की है। ये दरख्वास्त भी की है उनसे कि जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन है वापस लें। मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है कि हमने असेंबली स्मूथली चलानी है, गाली गलोच नहीं होनी चाहिए, शोर शरारमा ना हो। और जिस तरह हम आपको बता चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने 3 दिन बाद अपनी तकरीर को मुकम्मल कर लिया है। तवील खिताब में उन्होंने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उनका कहना था कि 383 अरब रुपए के नए टैक्स लग गए तो गरीब कैसे जिंदा रहेगा, वो इस बजट को पास नहीं होने देंगे। हुकूमत ने सिर्फ तख्तियां लगाई, फीते काटे, लेकिन दामन अमल से खाली रहा। रिकॉर्ड ज़रई पैदावार हुई तो आटा और चीनी क्यों महंगे हुए हैं। जनाब स्पीकर, गरीब आवाम की, लोगों की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। हम इस बजट के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के लिए इन 3 सालों में क्या क्या मां सवाए तख्तियां लगाई इन्होंने, फीते काटे। कौम को कुछ करके तो दिखाते कि भाई हम आए हैं नया पाकिस्तान बनाने। नया पाकिस्तान तो नहीं बना सके, थोड़ा बहुत हमने दाल दलिया हमने किया है। हर हवाले से इनका दामन अमल से खाली है। बम्पर क्रॉप हुई हैं तो फिर आटा 35 रुपए से 85 रुपए पे कहां किस तरह पहुंच गया। चीनी 100 रुपए से ऊपर किस तरह चली गई। बातों से, तकारीर से, मर्सियों से, इशार से
कौमें नहीं बनती, इंस्पायर तो कर देते हैं आप, लॉन्ग टर्म आपको काम करना पड़ता है, एटमी ताकत बन के रहना है, हालात और वसाइल पैदा करने होंगे। हाथ फैलाने वाला वो तो फैसला कर ही नहीं सकता, डिक्टेशन खत्म करनी है, स्कूल तोड़ना होगा। और इसके जवाब में विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि वजीर आजम हाउस के सालाना अखराजात में 108 करोड़ रुपए की कमी की गई है। ऑपोजिशन लीडर जाकर देखें कि लंगर खानों में गरीबों को इज्जत दी जा रही है और ये वजीर आजम के ऐवान में ना आने की शिकायत करते हैं। अपने भाई को भी वतन वापस आने का कहें। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा 3 बड़े डैम्स दियामिर मोमन भाषा पर काम हो रहा है। मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। अब तो दूध और शहद की नदियां छोड़ के गए थे। वजीर आजम इमरान खान ने मुश्किल तरीन फैसले किए। मईशत में 4% इजाफा हुआ। अपोजिशन दंग रह गई, आज तक समझ में नहीं आ रहा कि ये इजाफा कैसे हुआ। वैक्सीन अपने अवाम को नहीं दे सके, गज गज की लंबी जुबानों के साथ आकर तकरीरें करके बताते हैं कि वफाक ने कम खरीदी हैं। और ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन बातचीत के बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद वापस लिए जाने पर इत्तफाक हुआ है। ताहम नून लीग की तर्जमान का कहना है कि अब हमारा हदफ बड़ा है, अब तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ लाई जाएगी। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। ये कहेगा कि अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद लानी थी उसको वापस लेने का फैसला किया है, क्या वजह है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये देखना चाहिए कि ये अदम एतमाद हम लेकर क्यों आए थे। कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं, इनके पास कई एजाज हैं और 2 तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि वर्ल्ड कप्स इनके पास हैं या वो दुनिया का रिकॉर्ड होगा। एक तो ये कि 55,000 जाली वोटों से होने के बावजूद एक स्टे ऑर्डर की पर ये इस सीट पर बैठे हैं। सबसे पहली बात ये है, इनके खिलाफ जो इनका मुखालिफ उम्मीदवार था उसने ये साबित किया है अदालत में कि 55,000 जाली वोट हैं उस हलके में जहां से ये कामयाब हुए हैं और जिन जाली वोटों की वजह से आज इस सीट पे बैठे हैं सिर्फ एक स्टे ऑर्डर पे। वजह क्या थी अदम एतमाद लाने की? 19 कवानीन 19 मिनट से भी कम टाइम में इन्होंने मंजूर कर लिया है। ये दूसरा वर्ल्ड कप इनके पास है। ये दुनिया की तारीख में कोई पार्लियामेंट ऐसी नहीं होगी कि जिसने 19 कानून 19 मिनट में सारे पास कर दिए और वो 19 मिनट में आप उन कवानीन को पढ़ भी नहीं सकते। ये और उस वक्त उस पूरे हाउस में कोरम भी मौजूद नहीं था, यानी मतलूबात अरकान की भी नहीं। चलें, आपने तो ये फरमा दिया कि ये कानून जो है वो कानून साजी का अमल था, इसमें उजरत और जल्दबाजी की गई है, तो इसी वजह से आपने फैसला किया। लेकिन अब कोई यकीन दहानी आपको करवाई गई है कि आगे ऐसा नहीं होगा? एक तो ये यकीन दहानी कराई गई है कि उन तमाम कवानीन जो पास किए गए हैं, जिसमें कलभूषण का भी कानून है जो कि बड़ी जल्दी में उसको एनआरओ उसको सहूलतें देना थी, उसमें एक इलेक्शन लॉ भी है। वो इलेक्शन लॉ, इनको ये शर्म नहीं आती कि इस पीटीआई जब हमारे दौर में नून लीग के दौर में एक इलेक्शन रिफॉर्म हुआ, उसकी एक कमेटी बनी जिसने 3.5 साल मीटिंग्स की, उसमें 1 साल से जायद इजलास नहीं हो सका था उस कमेटी का, क्योंकि पीटीआई धरने में मसरूफ थी। हमने तो अक्सरियत के बलबोते पर ये बाहर बैठे थे, हमने तो वो पास नहीं किया था। हमने तो कहा था हर एक आदमी, वो शेख रशीद जैसा आदमी भी जिसका 1 वोट है पूरी असेंबली में, उसको भी उसके अंदर बैठाया था। हर एक की इनपुट ली, यूनानिमस कानून पास किया था। अच्छा चलिए, ये तो बताएं चौधरी साहब, आप लोगों ने डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद अब नहीं लेकर आ रहे, लेकिन आप लोगों ने प्लान किया कि आप स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता हुआ इस हवाले से? ये ऐसे स्पीकर साहब हैं कि यकीन करें, इस तरह के स्पीकर जो हैं वो सूबाई असेंबली तो दूर की बात है, ये किसी म्यूनिसिपल कमेटी के कन्वीनियर और स्पीकर के तौर पे भी काम नहीं कर सकते। इतने खौफजदा हैं अपनी नौकरी के लिए, यानी उनको कोई ना उन्हें कोई शर्म है या हया है, ना उन्हें कोई अपना लिहाज है, नौकरी की परवाह है कि स्पीकरी ना चली जाए, इज्जत बेशक जाती रहे। यानी ये आदमी कहता है कि मुझे जो हंगामा आराई हुई है उसमें वजीर कोई नजर ही नहीं आया। यानी मुझे लगता है, मुझे तो ख्याल था स्पीकर साहब सबसे ऊपर बैठे होते हैं।
और अब पता चला कि नहीं, वो लगता है वो तो किसी बेंच के नीचे बैठे होते हैं जिनको बेंचों पे ऊपर खड़ा 6 फुट का जवान मुराद सईद नहीं नजर आया। तो ये जनाब बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आप अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, राय का इजहार कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो आप देखिए कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये उनकी जानिब से बयान दिया गया, और ख़ास तौर पर जो नैरेटिव रहा कि भाई आपने जल्दी आपने कानून साजी कर ली। वो भी नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से 20 जो बिल उन्होंने बुलडोज किए हैं, तो ये भी तरीकेकार नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ और हमने देखा भी। खैर, हमने तो अभी बात कर ली कि जो कौमी बजट जो पेश हुआ था उस पर क्या हुआ कौमी असेंबली में, वो आपके सामने था। और आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज बलूचिस्तान का बजट पेश किया जाएगा और इस हवाले से सूबे में सियासी माहौल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अपोजिशन तरक्याती फंड्स ना मिलने पर सरापा एहतजाज है, जिसकी वजह से सूबे की जो मरकजी शाहराएं हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं। बिल्कुल, और अपोजिशन अरकान की जानिब से असम्बली के बाहर भी धरना जारी है। आज बजट इजलास के दौरान असम्बली के घेराव का भी ऐलान किया गया है। पश्तूनख्वा मैप और जमीयत उलमा इस्लाम का अपने हलकों को नज़रअंदाज करने के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुत्तहदा अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता बरसों की तरह इस बजट में भी अपोजिशन रहनुमाओं के हलकों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। बिल्कुल जी, और मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी भी रहेगा और शाहराएं ब्लॉक होने से गाड़ियों की हम देख रहे हैं कि तवील कतारें भी वहाँ पर लगी हुई हैं और ट्रांसपोर्टर्स और जो मुसाफिर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से बात करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान लियाकत शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहेगा कि बलूचिस्तान में अपोजिशन की कॉल पर 3 दिन से एहतजाज जारी है, शाहराएं ब्लॉक कर दी गई हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, लोग रोज़ इस पर ट्रबल फेस कर रहे हैं। ये मसला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? बजट के 5 दिन जो है या बजट के ये जो 1 हफ्ता है, इस पे सारे MPs अपोजिशन की वो इकट्ठे हो जाते हैं और डिमांड क्या करते हैं। डिमांड इनका ये है कि उनके डिस्पोजल पे फंड्स रखे जाएं और उनके कहने के मुताबिक स्कीमात जो है PSDP का हिस्सा बनाया जाए। जैसे माजी में होता रहा है, फौज स्कीमात, जैली स्कीमात, ठेकेदारों के साथ मिलके कमीशन किकबैक्स के लिए जो स्कीमात, वो पास्ट में प्रैक्टिस यकीनन होता रहा है। मौजूदा गवर्नमेंट आते साथ ही वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने 2019 में जो बजट आया उसमें 2500 जाली स्कीमात उसने डिलीट किए। वो प्रैक्टिस दास्तान पारीना बन चुका। अपोजिशन को हम ये कह के थक गए हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए आप बात करें, बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के लिए बात करें, बलूचिस्तान के आवाम की खुशहाली के लिए बात करें, और जो इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं जो चंद लोगों की जेबों में पैसे जाते थे, वो प्रैक्टिस अब ख़त्म हो चुका। और कहीं आईन पाकिस्तान में नहीं लिखा कि जो लेजिस्लेचर हैं उनको कोई फ़ंड दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए। तो बलूचिस्तान में हमारा जो बजट है, जो हमारा विज़न है, वो है पर्पस बिल्ट स्कीमात, प्रो पब्लिक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हम उसको जो है एसेस कर रहे हैं और एसेसमेंट की बेसिस पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किया जा रहा है। बलूचिस्तान का कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी बता दें, कोई एक तहसील बता दें, कोई एक ज़िला बता दें कि जहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स, आवाम के मुफादात और मुतल्लिका एरियाज़ में रिक्वायर्ड स्कीमात जो है बलूचिस्तान गुज़िश्ता जो हमारे बजट रहे उसमें और ये जो मौजूदा बजट है तो उसमें देख के हवाम फैसला करे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान का बजट जो पेश किया जाएगा तो अपोजिशन की जानिब से घेराव का ऐलान किया गया है, तो इसमें क्या ये हुकूमत के लिए मरहला आसान हो पाएगा बजट पास कराना? जो आइडेंटिफाई उन्होंने पास्ट में किए भी हैं स्कीमात, जब बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने समझा कि वो बेहतर है आवाम के मुफाद में, हमने उनको एंटरटेन किया। ट्विटर पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब लोग प्रपोज करते हैं, जनरल पब्लिक जहाँ जहाँ स्कीमात हम समझते हैं कि आवाम के वेलफेयर में, उसको हम बिल्कुल एंटरटेन कर रहे हैं। और ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके अपने जो माजी में नालियाँ और गलियाँ बनाने वाली जो स्कीमात हैं उनको PSDP का हिस्सा बनाएं, ये हम करने नहीं जा रहे। हम स्कूल बना रहे हैं, चूँकि अपोजिशन के MPs जो है वो रोड नाली गलियां ज़्यादा बनाना चाहते हैं जिसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है, बिल्डिंग्स में कमीशन नहीं मिलता। तो लाजिम बात है कि उनके स्कीमात में जो है ना स्कूल होंगे, ना हॉस्पिटल्स होंगे, ना कोई वेलफेयर फंड रखा जाएगा। बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर मार्केट्स बनेंगे, मार्बल सिटीज़ बनेंगे। हमारा प्लान है 200 प्राइमरी स्कूल्स
बनाने का, 100 हाई स्कूल, 50 मिडिल स्कूल, 10 जो हायर सेकेंडरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो हम बनाने जा रहे हैं। 41 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाई स्कूल को अपग्रेड करके अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही काम हो। लेकिन अभी जो ऑपोजिशन है जिसने जो एहतजाज करी वो बेसिकली कह रही कि भाई जी जो बजट आपने पेश करना है आपने तो हमें उसमें एतमाद में ही नहीं लिया, तो क्या उनका शिकवा दुरुस्त है? हमने सबको एतमाद में लिया है। देखें पब्लिक जो ओपिनियन आ रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, लोगों के साथ हमारा रब्ता है। हमेशा अपोजिशन के अरकान ने जब जो उन्होंने बेहतर स्कीमात जब तजावीज़ किए हैं बजट या बजट के अलावा, हमेशा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उस पर लब्बैक कहा है। आज भी हमने उनको एतमाद में लिया है, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है जो पास्ट के प्रैक्टिसेस हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस, उस सिस्टम पे उनको एतमाद है। ये जो प्रो पब्लिक एक विजन है हमारा आवाम पे इन्वेस्ट करने का, आवाम पे खर्च करने का, अवामी स्कीमात बनाने का, मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने का, और जो नीड बेसिस पे जो स्कीमात हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको देख के जो हम बजट बना रहे हैं इससे उनको परेशानी है। हम पब्लिक नीड बेसिस को देख रहे हैं, ये अपने इंटरेस्ट और अपने नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत लियाकत शाहवानी साहब, और ज़ाहिर है कि अपना प्लान मैप आउट कर रहे थे कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन भी इस प्रोसेस का हिस्सा बने। लेकिन ऑपोजिशन कहती है कि हमें एतमाद में नहीं लेते तो हम बजट जो है वो पेश भी नहीं होने देंगे और पास भी नहीं होने देंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरह से अफाम तफहीम से इस मामले का हल हो। तो मदिया, अब थोड़ा सा फिर सियासी सूरत हाल से बाहर निकलते हैं। कोरोना वायरस के जो खदशात थे, जो ख़तरात थे, जो तबाहकारियाँ थीं, जब किसी हद तक कम हुई क्योंकि हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन को फ़रोग दिया गया और लोग भी इस सिलसिले में आ गए हैं, तो उसके बाद सयाहत के शोबे को अब खासा बूम मिल रहा है क्योंकि लोग जो घुटे हुए अपने घरों में रह रहे थे अब बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे में एक मकाम जो पाकिस्तान में और आ जाता है जिसका नाम जो कि बड़ा मशहूर मारूफ है वो है मालम जब्बा। बिल्कुल जी, मालम जब्बा के रिजॉर्ट को तकरीबन 2.5 महीने के बाद खोल दिया गया। खैर वहाँ पे जो स्कीइंग वगैरह जो तमाम तर चीज़ें होती थी वो अभी तक वहाँ कुछ किया नहीं गया, वो भी बंद कर दी गई, तो अल्लाह करे वो भी खोल दी जाए। लेकिन लोगों ने मालम जब्बा जाना दोबारा शुरू कर दिया और इस हवाले से रिपोर्ट करे हैं शहजाद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। चलिए, थैंक यू शहजाद। शहजाद ने बता दिया कि जो जिप लाइनर की जो फैसिलिटीज वगैरह बंद कर दी गई थी अब खोल दी गई, और इस कदर मजेदार, और ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जिप लाइनर है, बड़ी जबरदस्त है। आप देखें कि वैसे मुल्क से बाहर जाकर लोग इससे लुत्फानंदोज होते थे, लेकिन जिप लाइनिंग बड़ा अच्छा एक तजुर्बा होता है, खासतौर पर एक प्लेटफॉर्म से जब आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उसके अंदर जो आपके तराह निकलते हैं और सांस अटकी हुई होती है, और ये भी आप रस्सी को भी देख रहे होते हैं। मैं तो रस्सी को ही देख रहा होता हूँ कि कहीं उसका क्लिप निकल ना जाए। नहीं, वो नहीं निकलता, लेकिन आपको पता है जितना आपका वेट हल्का होता है ना, आप जिप लाइन में उतनी स्पीड से पहुंचते हैं। हाँ जी, भारी वेट में तो आप यूं भारी वेट में आप आराम से एंजॉय करते हुए आते हैं। तो भारी वेट वाले ये करें कि बंजी जंपिंग जो होती है ना वो ट्राई करें, और फिर दूसरे उनके साथी हैं वो दुआ करें कि रस्सी खुल जाए। अच्छा, अभी स्कीइंग क्या हो रही है? क्योंकि मतलब अभी आपके सामने ही है कि बर्फ तो वहाँ पर है नहीं, तो बर्फ वहाँ पे पिघल चुकी हुई है, लेकिन जब यहाँ पे बर्फ पड़ती है तो यहाँ पे स्कीइंग का भी मजा आता है, यहाँ पे स्नो ट्यूबिंग का भी मजा आता है, और बहुत सारी ऐसी यहाँ पर एक्टिविटीज हैं जो आप लोग कर सकते हैं और आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा महसूस होंगे। अब हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। बहुत बोलिए हम लोगों ने, हम लोग पानी पिए, अपना गला तर करें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और जिस तरह से अब से तकरीबन ठीक आधे घंटे पहले हमने आपसे ये तस्करा किया था कि किस तरीके से YouTube एक बड़ा अच्छा जरिया है, आप पैसे कमा सकते हैं, आप मशहूर हो सकते हैं, अपनी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, सिर्फ अच्छे कंटेंट के साथ नहीं। कैसा कैसा कंटेंट होता है, मतलब केले छीलने के 3 तरीके हों तो वो भी हिट हो जाते हैं। आपका प्रोग्राम हो सकता है उतना नहीं देखा जाता हो जितने वो तरीके देखे जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन अगर आप YouTube पे ऐसी कोई हरकत करेंगे सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, आप लोगों से उनकी इजाज़त के बगैर, स्पेसिफिकली पब्लिक मकामात पर ख़वातीन की इजाज़त के बगैर उनकी वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड करेंगे तो आपको पड़ेगा महंगा। ख़वातीन को हरासा करने के इल्ज़ाम में फाइनली कैसे यूट्यूबर को धर लिया गया है। गुजरांवाला पुलिस ने गखर मंडी के रिहायशी मोहम्मद अली नामी मुलजिम को ख़वातीन से गैर इखलाकी हरकत, असलहे के जोर पर गालम गलोच करने के इल्ज़ाम में उसको गिरफ्तार करके अब उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, और इस शख्स की तस्वीर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी, YouTube पे तो आप देख ही चुके होंगे इससे पहले, और एक शिकवा है जो नाजरीन है उनसे भी, और YouTube पे जो फॉलो करते हैं वीडियोस को इधर उधर शेयर करते हैं, कि जब आप ऐसी वीडियोस देखते हैं
تو اس کا مطلب ہے آپ ایسے لوگوں کے کنٹینٹ کو اپروو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ویوز دے رہے ہوتے ہیں, جس کی بنا پر لائکس دے رہے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ معاملہ آپ کے گھر کی کسی خاتون سے یا آپ کے جاننے والے کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے. تو جناب ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. عبد الوہاب صاحب ہمیں یہ ایس پی صدر ہیں گوجرانوالا, تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ کیسے گرفتاری عمل میں آئی. السلام علیکم عبد الوہاب صاحب. ایس پی صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی. ہم دوبارہ سے کوشش کریں گے کہ ہم ایس پی صاحب سے بات کریں. ایس پی گوجرانوالا صدر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ہم ان کو دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ایس پی صاحب, آپ کو ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ اچھا, نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص, جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک یوٹیوبر جو کہ خواتین کو پرینک کی مد میں ان سے بدتمیزی کرتا تھا, ان کو ہراس کرتا تھا, اور جب خواتین اسے تنگ آتی تھیں یا جیسے خواتین ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی یا وہ کسی اور کو بلا کے انوالو کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ آئیں ہماری مدد کریں, تو وہ شخص کہتا نہیں آپ وہ سامنے دیکھیں, وہ کیمرہ آپ کے سامنے, میں تو سب ریکارڈ کر رہا تھا. اور اس کے اندر پھر 2 سے 3 لوگ ہوتے ہیں, مطلب جب بھی ایسے ہوتے ہیں کیمرہ مین ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پیسے اچھے خاصے ہوتے ہیں, تو وہ باقاعدہ اسلحہ لے کے چلتے ہیں تاکہ کوئی مرد حضرات اگر جائیں تو ایک تو کیمرے کا. اور خیر, عبد الوہاب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ادھر گوجرانوالا, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبد الوہاب صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ایک یوٹیوبنگ ایک عرصے سے چل رہی ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ویڈیوز ادھر ادھر شیئر ہوتی ہیں, تو آپ کی اپنی محکمہ پولیس کی اس حوالے سے اپروچ کیا ہوتی تھی؟ آپ سوچتے نہیں تھے کہ یار یہ بندہ سڑک پہ کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, قانونی کارروائی ہونی چاہیے, یا پھر آپ منتظر تھے کہ درخواست آئے گی تو پھر پکڑیں گے؟ دیکھیں, پولیس تو ظاہر کمپلینٹ پر ہی کام کرتی ہے. اس طریقے سے خود سے سو موٹو ایکشن تو ہوتا کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. تو جب درخواست آئی اور اس یوٹیوبر کے خلاف کافی شکایات کا انبار لگا, تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک درخواست پر ہی اریسٹ کیا ہے, اور اس سے مزید ہم تفتیش کر رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا تھا سارا. اچھا, اس وقت سب سے اچھی عبد الوہاب صاحب جو مجھے چیز لگ رہی ہے نا, کہ وہ شخص جس نے خواتین سے بدتمیزی کی ہے اس کو خاتون اہلکار ہی نا اس کو کڑیاں ڈال کے وہ ساتھ میں کھڑی ہیں. مجھے بتائیں, ایسے شخص جو ایسی نیچ اور گھٹیا حرکت کرے, اس کو زیادہ سے زیادہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ تو اس پر لا ہے, 354A لگی ہوئی ہے اس کے اوپر, اور 148 سیکشنز ہیں ہمارے پاس کہ جس میں اس کو قانون کے مطابق ہی سزا ہوگی, جو بھی جج صاحب ٹھیک سمجھیں گے وہی سزا ہوگی. تو ایس پی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ یوٹیوبنگ اور اس سے ریلیٹڈ پرینکس اور اس سے ریلیٹڈ ہیراسمنٹ کے حوالے سے کیا پاکستان میں کوئی قوانین موجود ہیں جو کہ قابل عمل ہوں آپ کے لیے؟ کوئی نئے قوانین بنے ہیں اس حوالے سے؟ جی, الیکٹرانکس کرائم ریگولیشن ایکٹ تو ہے ہمارے پاس جو کہ ڈیل کرتی ہے, اور وہ پولیس کا مینڈیٹ نہیں ہے ظاہر ہے, لیکن آن پرائیویٹ کمپلینٹ پولیس ایکشن لیتی ہے. اگر کوئی کسی کو کمپلین کرتا ہے کہ میرے ساتھ کسی نے کوئی بدتمیزی وغیرہ کی ہے تو اس میں پولیس ایکشن لیتی ہے. اچھا, تو عبد الوہاب صاحب میرے خیال سے جو ویڈیوز ہم بھی دکھا رہے ہیں, ابھی ہم نے دیکھا کہ پنک کلر کی کپڑوں میں خاتون بیٹھی ہوئی ہے, کس طریقے سے شخص کے اور کتنے قریب سے اس نے اپنا ہاتھ بھی وہاں پہ کیا, یعنی کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک فزیکل ڈسٹینس جو ہونا چاہیے, جس کو ہم سوشل ڈسٹینس کہتے ہیں, 2 فٹ کا فاصلہ رکھے, اس شخص نے وہ بھی نہیں کیا. بڑے آرام سے, بڑا کمفرٹیبل ہے اس کی باڈی لینگویج. تو کیا ایسی ویڈیوز دیکھ کے کیا پھر پولیس ایکشن نہیں لے سکتی؟ کیا یہ ویڈیوز اس کے ثبوت کے طور پہ کافی نہیں ہے اس شخص کے خلاف؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے, سوری, آپ کا کویشچن مجھے میں آپ سے یہ کہہ, ٹھیک ہے, میں عبد الوہاب صاحب آپ سے دوبارہ سوال پوچھ لیتی ہوں. سوال یہ ہے کہ جو ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں, جس طریقے سے وہ خواتین سے بدتمیزی کر رہا ہے, ایک فزیکل ڈسٹینس, ایک سوشل ڈسٹینس جو مینٹین کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر رہا, اور اتنے قریب آ کے خواتین سے بات کر رہا ہے, جیسے ہم نے بھی دکھائی بھی پنک کلر کی شرٹ میں خاتون بیٹھی ہیں. تو کیا یہ ویڈیوز آپ کے لیے ایز اے ثبوت کافی نہیں ہیں؟ جی, ایز اے ثبوت تو کافی ہوتی ہے, لیکن کمپلینٹ بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا کوئی, جو کہ جس کو ہم پولیس کی زبان. ایس پی صاحب, تو اس معاملے میں پولیس مدعی نہیں بن سکتی؟ مثال کے طور پر کوئی شخص وہاں پر کھڑا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, کوئی شخص بندوق لے کے اس کو گولی مارنے لگا ہے, تو ایسے میں آپ گولی چلنے کے بعد اس شخص کی جانب سے مرنے سے پہلے شکایت کرنے کے انتظار کریں گے یا پہلے کارروائی کریں گے؟ میں مثال کے طور پر پوچھ رہا ہوں آپ سے. 2 ڈیفرنٹ چیزیں ایک ساتھ ملا میں مثال کے طور پر پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیننٹ ہونا چاہیے, تو اس لیے میں جاننا چاہ رہا تھا. گولی مارنا اور باقی چیزیں کرنا ایک طرف ہوتا ہے, پولیس کی چونکہ پریزنس ہوتی ہے آن اسپیسیفک جگہوں پہ. پارک میں اگر کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اور پولیس والے نے اس کو دیکھا نہیں ہے
तो इसमें पुलिस वाला तो कंप्लेनेंट का ही वेट करेगा। अच्छा, कंप्लेनेंट कोई आए, लेकिन तो ये उसको शख्स अगर बताए, गुजरांवाला से उसको ताल्लुक रखता है और वहां पर जाहिर है कि इसकी बहुत सी वीडियोस हैं जो कि मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलाकों में ये वीडियोस बनाता है और इसके साथ क्रू होता है 4 से 5 लोगों का, और ये सिर्फ अकेला नहीं और बहुत से लोग हैं, कुछ लोग अच्छा कंटेंट भी जनरेट कर रहे होते हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि पुलिस के इल्म में ना हो? नहीं, मुमकिन जरूर है। जब भी हमारे इल्म में ये चीज आई तो हम ही ने उसके ऊपर एक्शन लिया है। ठीक है, जब बिल्कुल हमारी सही कह रहे हैं। हाँ जी आप मजीद क्या करेंगे, बस ये बता दीजिए क्विकली। मजीद एज पर लॉ उसके साथ डील करेंगे। उसके जो कैमरामैन था और उसका डायरेक्टर था वो भी हमने हिरासत में ले लिया और एज पर लॉ उसको हम इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे और कहते थे कि एज पर लॉ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ यूट्यूबर जो इसके साथ इसके कैमरामैन थे और साथ में एक और शख्स जो कि असिस्ट कर रहा था उनको भी हिरासत में लिया गया है। और मैं चाहूंगी जरा तस्वीर इस शख्स की दोबारा दिखाएं ताकि जिस खानदान के सपूत हैं और जिनके भी रिश्तेदार हैं उनको पता चले जनाब कि ये शख्स जो है ना, ये तो बिल्कुल काबिल एहतराम शख्स है ही नहीं। जिस किस्म की घटिया वीडियो जो बना रहा था, खवातीन को डिसरिस्पेक्ट करके सस्ती शोहरत कमाने की कोशिश कर रहा था, ये शक्ल आप कभी ना भूलिएगा। और ये शख्स किसी भी किस्म के एहतराम के काबिल ही नहीं है और पता होना चाहिए लोगों को। और बहुत सारे मर्द हजरात जो हमें ऑलरेडी देख रहे हैं और जिनको लगता है कि खवातीन को डिसरिस्पेक्ट करके चले बाद में कहते हैं हम प्रैंक कर रहे थे, तो उनका अंजाम क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, काबिल एहतराम है खवातीन और कोई भी शख्स, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी जाहिर है कि हर किसी की एक लाइफ होती है। और आप ज़रा सोचिए कि अक्सर हम वीडियोस में देख रहे होते हैं कि होता क्या है कि कोई शख्स जा रहा है, आप ऑफिस तैयार होकर जा रहे हैं और आप नॉर्मल अपने हुलिये में तैयार टिप टॉप आपकी एक है, ऐसे में एक शख्स आके आप पे पानी फेंक देता है और भाग जाता है। और वो बेचारा कहता है कि यार मैं हो सकता है जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है उसकी ज़िंदगी में क्या मसाइल हों, या फिर कोई शख्स जा रहा है बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, किसी भी तरह से आप उसके पास जाके कोई बाजा बजा देते हैं, वो अपने हवास में ना हो, कहीं जाके टकरा जाए या किसी के साथ ज़िंदगी में जाहिर है कि हमारा एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, हम तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं रहते और यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हैं, तो ऐसे में ख्याल करें यार थोड़ा, मतलब ट्रू। और स्पेशली जो बाइक जो चला रहे होते हैं उनका भी जरा ख्याल करें। पीछे से भी हम देखते हैं, जैसे भी आपने बात की, तो अचानक आगे कोई हॉर्न दे देंगे तो वो आपको देखें। अगर बाइक वालों को भी चाहिए कि वो अपनी लेन में चलाएं, लेकिन अगर पीछे से कोई आगे किसी गाड़ी और या उसको तंग करने के लिए ऐसा कोई भी बाजा बता दीजिए, जैसे आपने कहा ना कि लोग स्पेशली सीटियां बजा रहे होते हैं, तो ये मत करें, उनका फोकस आउट हो सकता है, तो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। खैर जी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि सड़क पर गाड़ी चलाते आप अक्सर देखते होंगे वैसे कि जो रिक्शा और जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो अपनी लेन को छोड़कर दाएं और फिर बाएं झूमने लगते हैं। और ऐसे शाह सवारों की वजह से शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। और अक्सर ऐसा होता है शफा कि जैसे मैं खुद गाड़ी चला रही होती हूँ और मैंने इंडिकेटर दिया काफी पहले से कि जी मैंने लेफ्ट मुड़ना है, मैं जब लेफ्ट मोड़ी होती हूँ तो उसी दौरान मैं देखती हूँ कि एक बाइक वाला आके ना निकल के आगे चला जाता है। कल का एक वाकया है कि कल आप देखें सबसे राइट जो लेन होती है वो गाड़ियों के लिए होती है, नॉर्मली मुख्तलिफ लेन्स होती हैं, जो सबसे ज्यादा राइट पे होती है वो ओवर स्पीडिंग के लिए होती है, मतलब टेक वो करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए। उसके बाद जो दरमियान वाली लेन होती है उसके ऊपर आप सफर जारी रखते हैं। जो बाइकर्स हैं उनके लिए सबसे आखिर वाली लेन होती है। अच्छा, एक गाड़ी ने बाइक वाले को ओवरटेक किया राइट साइड से, तो वो उस पर गुस्सा कर रहा था, बाइक वाला उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा था कि भाई तुमने मुझे राइट से ओवरटेक क्यों किया। हालांकि ओवरटेक करने का जो सही मुकाम है कि आप राइट साइड से करें, इसके बजाय कि आप, इसीलिए कहा जाता है कीप टू द लेफ्ट। मसला ये जनाब एहसास भी नहीं होता कि भाई इनके लिए सही सिमत क्या है, कवानीन की भी पासदारी नहीं करते। तो लाहौर से ही हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अहमद रहमान के एग्जैक्टली मसला होता क्या है। सो मच अहमद रहमान। और बीइंग अ लाहौरी, जो चीज़ें अहमद रहमान ने आपको दिखाया है, जिन जिन स्पॉट्स पे खड़े होकर आपको बताया, यकीन माने ऐसा ही होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है और ऐसा सिर्फ लाहौर में नहीं होता, कराची में भी ऐसा ही होता है। और आप कराची में जरा सोचिए कि जब आप गाड़ी चला रहे हो और वहाँ पर सड़कों पर गड्ढे हों, जिन सड़कों पे, तो वहाँ पर से बाइकर्स भी लेफ्ट राइट इधर बचाते बचाते गाड़ी जा रहे होते हैं और आप भी अपनी गाड़ी को बचा रहे होते हैं। तो बड़ा आपको ख्याल करना पड़ता है कि दूसरों को किसी तरीके से हिट ना करें। तो अपनी अपनी लेन्स को फॉलो करें और ट्रैफिक पुलिस जो है वो इंश्योर करे कि इदारे अपनी हुदूद से तजावुज़ ना करें, तो अपनी हुदूद से तजावुज़ ना कीजिए। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब कुछ बात हो जाए बच्चों की तरबियत के हवाले से। आजकल के बच्चे जो हम कहते हैं जी बड़े हाइपर बच्चे हैं, बड़े वायलेंट बच्चे हैं, तो मसला ये जनाब कि उनकी तरबियत सिर्फ उनकी माँ नहीं करी,
ان کی تربیت ڈوریمون بھی کر رہا ہے اور ان کی تربیت پبجی بھی کر رہا ہے, ان کی تربیت وہ تمام تر چیزیں کر رہی ہیں جو کہ وہ روز یوٹیوب پہ اپنے گیجٹس میں دیکھتے ہیں, کیونکہ مائیں اتنی بزی ہوتی ہیں کہ مائیں بچوں کو کہتی ہیں بیٹا یہ پکڑو اپنا رو نہیں, پکڑو, بس رونا نہیں, اور اماں اپنا فون لے کے بیٹھ جاتی ہیں, اس کے اوپر کوئی نیٹ فلکس کا سیزن, کوئی ڈراما, کسی بھی طرح کا کوئی سوپ وہ دیکھتی رہیں گی, اور اس کے بعد جناب وہ کہیں گی کہ چلو بچے کا دماغ لگا. ایسے میں بچہ نہ صرف یہ کہ یوٹیوب پہ طرح طرح کی ویڈیوز دیکھے گا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو چاہے وہ ایکسپلور کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی پیرنٹل کنٹرول ہوتا ہے فون پہ, لیکن کم ہی لوگ اس کو یوز چھوٹے بچے دیکھیں ان کے دماغ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ وہی ریپلیکیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے بچپن میں ایک ایڈ آتا تھا جس میں ایک بڑا شخص جو تھا, جو باپ تھا, وہ سگریٹ پی رہا ہوتا تھا, تو ساتھ میں جو بچہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے تو وہ اپنی پینسل کو جو ہے وہ آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے, بالکل ایسے کہ جیسے وہ اپنے باپ کو, جیسے باپ کر رہا ہے وہ بھی ویسے سگریٹ پی رہا ہے. تو جو آپ کرتے ہیں بچہ آپ سے سیکھتا ہے. اب کیا کرنا چاہیے کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کو صحیح راہ پہ رکھا اور ان کی اچھی تربیت کی جائے, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں حنا حمید جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم حنا, ویلکم ٹو باخبر سویرا. کچھ حنا ہم نے بھی وجوہات بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے آج کل کے بچے اتنے ایگریسو کیوں ہیں, اتنے ہائپر کیوں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کلینکل سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ اچھا, کیونکہ آج کل کی اگر میں بات کروں تو پچھلے 1.5 سال سے ہمارے پاس جو پینڈیمک کی سچویشن چل رہی ہے, جہاں پہ بچوں کی روٹین ڈسٹرب ہو گئی. اب روٹین ڈسٹرب ہونے سے کیا ہوا کہ چائلڈ مینجمنٹ, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو پیرنٹنگ سٹائل ہے, پیرنٹنگ سٹائل خالی روٹین سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بیسکلی ہمارا جو پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے وہ بچے کے بیہیویئر پہ اور بچے کو مینیج کرنے میں ہماری بہت مدد کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم سائیکلوجیکلی 3 طرح کے پیرنٹنگ سٹائلز کی بات کرتے ہیں. ایک پہلا پیرنٹنگ سٹائل ہمارے پاس وہ پیرنٹنگ سٹائل ہے جسے ہم اتھارٹیرین پیرنٹنگ سٹائل کہتے ہیں. عام زبان میں, عام فہم میں اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو یہ وہ پیرنٹنگ سٹائل ہے کہ جہاں پہ پیرنٹس ٹیک دا فل کنٹرول اینڈ دے ٹرولی نیگلیکٹ اس کی بچے کی ایموشنل نیڈس کو, وہ بالکل سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اس کی سوشل نیڈس, اس کی ایموشنل نیڈس, جیسے وہ بچہ ہر وقت یا تو پڑھ ہی رہا ہوگا, پڑھو بیٹھ کے جا کے, گو ٹو یور روم, گو ٹو یور روم, اوکے. دے وونٹ لسن, دے وونٹ اٹینڈ ٹو دا نیڈس آف دا چائلڈ. یہ بالکل بھی صحیح پیرنٹنگ سٹائل نہیں ہے. اس کے کوئی پازیٹیو افیکٹس ہمارے سامنے نہیں آتے, اور اگر کچھ آتے بھی ہیں فار دا ٹائم بینگ تو اس کے لانگ لاسٹنگ نیگیٹو امپیکٹس بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل بچے کے اندر نیگلیکٹ کی فیلنگس ڈیولپ ہو جائیں گی. ظاہر ہے بچہ اپنے پیرنٹس سے دور ہو جائے گا, ایموشنلی ایک ڈسٹینس آ جائے گا. بالکل ایموشنل ڈسٹینس آ جائے گا. بچہ اریٹیبل فیل کرے گا بیکاز نوبڈی از دیئر ٹو لسن ٹو دا چائلڈ. دوسری چیز, وہ بچہ ایموشنل بانڈنگ کہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. اب جیسا آپ نے کہا سوشل میڈیا کی اور گیجٹس کی ایج ہے ہمارے پاس, یہ سوشل میڈیا اور گیجٹس ہمارے پاس جہاں پہ بہت سارے ایڈوانٹیجز لاتے ہیں, ویسے ہی بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز بھی لاتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کہ شاید بچے کو غلط طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, بچے کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, بچہ غلط بیہیویئرز میں انگیج ہو سکتا ہے. جب آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے بچہ اس سائڈ پہ جائے گا. اچھا, دوسرا ایک چیز ہم نے ایک اسپیکٹ یہ بھی دیکھا ہے کہ جب گھر میں 2 بچے ہوں تو جو چھوٹا بچہ آتا ہے اس پر توجہ زیادہ دی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں جو دوسرا بڑا بچہ ہوتا ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, اور پھر وہ ایک طرح سے اپنے بھائی سے نفرت بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیتا ہے. تو اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے؟ اس چیز کو ہم لوگ سائیکلوجیکلی سبلنگ رائیولری کی ٹرم یوز کرتے ہیں اس کے لیے, کہ بچہ جو بڑا بچہ ہے اس کی وہ خود کو تھوڑا سا کمتر فیل کرنے لگے گا, اس میں انفیریورٹی کمپلیکس یا انسیکیورٹی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں چھوٹے والے کو زیادہ. اکثر آپ لوگوں نے بھی گھر میں دیکھا ہوگا جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے 2 بچوں کے درمیان تو پیرنٹس اس کو ختم کروانے کے لیے بڑے بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو تھوڑا سا پیمپر کر لیتے ہیں. یہاں پہ سچویشن الٹ ہو جاتی ہے کہ چھوٹے بچے کو ڈانٹ دیا, مار دیا, اور بڑے بچوں کو تھوڑا سا پیار کر کے اس کو سائڈ پہ لے گئے. اس طرح سے ہم غلطی ہمارے تو منہ سے یہ بھی کیا جاتا ہے نا کہ اگر چھوٹے بچے کو سبق سکھانا ہے تو بڑے بچوں کے تھپڑ لگا دیا, چھوٹے والا خود ہی ڈر جائے گا. بالکل بالکل بڑے والا بچہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک سچویشن آف کمپٹیشن بیچ میں لے آتے ہیں. جو بڑا بچہ ہے وہ یہ سیکھے گا کہ آئی لاسٹ دی گیم, ٹھیک ہے, اور چھوٹا بچہ وہ میرے اگینسٹ میرا بھائی یا میری بہن وہ ون کر گیا, ٹھیک ہے. یہ نہیں کرنا ہے. اٹس نیور کمپٹیشن, بیکاز یہ سچویشن تو ہر گھر میں دن میں 2-3 دفعہ بھی ہو سکتی ہے, ہفتے میں 10-12 بار بھی ہو سکتی ہے, بیکاز آج کل تو اسکول بند ہے, بچے گھر میں ہیں, تو وہ جو ایک گیجٹ ایک کے پاس ہے وہ دوسرے کو بھی چاہیے, جو ایک ٹوائے ایک کے پاس ہے وہ دوسرے کو بھی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس ٹائم پہ بچوں کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کروائیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے کوشچننگ کریں ٹو لیٹ دیم نو ہو واز رائٹ اینڈ ہو واز رانگ. صحیح. تو کیا کیا جانا چاہیے؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو شیر کی نگاہ سے اور کھلاؤ سونے کا نوالا, تو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل بالکل, سونے کا نوالا اور شیر کی آنکھ, ایگزیکٹلی یہی وہ پیرنٹنگ سٹائل ہے جسے ہم اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل کہتے ہیں سائیکلوجیکلی.
पेरेंटिंग मैनेजमेंट की वो टेक्निक है जहाँ पे आप बच्चे की इमोशनल नीड्स को भी फुलफिल कर रहे होते हैं, उसकी सोशल नीड्स को भी फुलफिल कर रहे होते हैं और साथ में ही उस बच्चे को डिसिप्लिन भी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे डिसिप्लिन करने का तरीका क्या है, ये नहीं कि आप बच्चे को ये कहें इंसान बनो, बच्चा कहेगा इंसान तो हूँ और क्या करूँ, या ये कह देना कि अब्बा को आने तो मैं बताऊंगी, ठीक है ना, अच्छा ठीक है अब्बा आएंगे तब देखा जाएगा। बचपन में इसी टेरेन में जिए हमने। एग्जैक्टली, बिल्कुल, अब आएंगे तो देखा जाएगा, तब तक आई एम अलाउड टू डू व्हाटएवर आई वांट टू। नहीं उस 3 घंटों में बच्चा लिटरली पागल हो जाता था खौफ के मारे, क्योंकि माओ को खुद मैनेज नहीं करना आ रहा है, ठीक है। हमने उनकी रूटीन सेट करनी है, सबसे पहले उनकी एक स्केड्यूल बनाना है, बिकॉज ऑब्वियसली पेंडेमिक में हमारे पास बच्चों की रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, वो गैजेट्स पे हैं तो गैजेट्स पे ही हैं, ठीक है, पढ़ाई बिल्कुल साइड पे हो गई, ठीक है। बच्चे को साथ बिठा के एक रियलिस्टिक रूटीन बनाए उसकी कि जहाँ पे उसको गेमिंग का टाइम भी मिल रहा है, उसको बाहर जाने का मौका, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने का मौका भी मिल रहा है और उसकी पढ़ाई भी उसमें साथ और है ना, यहाँ पर सिर्फ माँ को नहीं, यहाँ पर बाप पर भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करना है। बहुत शुक्रिया जी, हिना हमीद हमारे साथ मौजूद की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और बच्चों का ख्याल कैसे रखना है अच्छे तरीके से बताया। और आपने भी अब अपना ख्याल रखना है, क्योंकि जिंदगी रही तो आपसे इंशाल्लाह पीर वाले दिन मुलाकात होगी, इंशाल्लाह। तब तक मुलाकात होगी, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।